Leave application. Ms. Zaib Jafar, Mr. Tahir Sadiq, Mr. Ghulam Ali Talpur, Chaudhry Muhammad Shehbaz Babar, Mr. Nur Hassan Tanveer, Saeed Naveed Kamar, Mr. Ali Zahid, Mr. Khurram Dastagir, Sardar Muhammad Irfan Dogar, Sardar Talib Hussain Nakai, Saeed Ayaz Ali Shah Shirazi, Chaudhry Armaghan Safkhani, Mr. Sajid Hussain Turi has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. ये शेर अकबर खान उसने रिक्वेस्ट की है अली मोहम्मद खान ने कि मैं चूँकि सेनेट में हूँ वो मैं इसको थोड़ा डिफर करता हूँ जैसे वो आता है वो मैं उसको लूँगा हम उसको आगे बिजनेस लेंगे आइटम नंबर 4 प्लीज बाबर रवान साहब प्लीज Thank you. Mr. Speaker, I beg to lay before the National Assembly the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 2020, Ordinance number Roman 6 of 2020 as required by the Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 26 of 20 stand led. Item number 5. Dr. Abdul Hafiz Babar Rwan sir, please. I wish to lay before the National Assembly the Companies Amendment Ordinance 2020, Ordinance number Roman 5 of 2020 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Companies Amendment Ordinance 2025 of 2020 stand led. Item number 6. Babar Rwan sir, please. I wish to lay before the National Assembly the Corporate Restructuring Ordinance 2020, Ordinance number Roman 9 of 2020 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Corporate Restructuring Companies Amendment Ordinance 2029 of 2020 stand led. Item number 7. Dr. Babar Rwan sir, please. I wish to lay before the National Assembly the Corporate Assembly the Companies Second Amendment Ordinance 2020, Ordinance number Roman 10 of 2020 as required by Clause 2 of the Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Company's Second Amendment Ordinance 2020, 10 of 2020 stand led. Item number 8. Babar Rwan sir, please. I wish to lay before the National Assembly the Public-Private Partnership Authority Amendment Ordinance 2020, Ordinance number Roman 7 of 2020 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. The Public-Private Partnership Authority Amendment Ordinance 2028 of 2020 stand led. Item number 9, Introduction of Bills. G please. Babar Rwan sir, please. I wish to introduce a bill further to amend the Control of Narcotics Substances Act 1997, the Control of Narcotic Substances Amendment Bill 2020. Further to amend the Control of Narcotic Substance Act 1997, the Control of Narcotic Substance Amendment Bill 20 stand introduced. Item number 10. Babar Rwan sir, please. I wish to introduce a bill to Just amend 1 minute, sir. Just may I the introduce Limited Liability Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 2020. A bill to amend the Limited Liability Partnership Act 2017, the Limited Liability Partnership Amendment Bill 20 stand introduced. जी अनुमित कौर साहब प्लीज क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया जनाब स्पीकर. जनाब स्पीकर, काफ़ी सारे बिल्स हैं जो कि आज के ऑर्डर ऑफ द डे पे दिए हुए हैं जो रिलेट करते हैं FATF से, लेकिन गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ये एक अंडरस्टैंडिंग हुई है जी प्लीज. जी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग हुई है कि ये तमाम बिल्स जो हैं वो कंसेंसस से ही पास होंगे, बग़ैर कंसेंसस के नहीं होंगे. और इसी वजह से आपने कमेटीज़ भी बनाई है, लेजिस्लेटिव कमेटी वगैरह. तो जब तक कि वो सारी जो है कंसेंसस नहीं बन जाता
तो उसको हम यहाँ पे इवन इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। और मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस चीज़ को तब तक रोक दें जब तक एक कंसेंसस बन जाए, विच इज़ एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डेज ओनली। और उसके बाद जो है उसकी पैसेज जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी इस हाउस में भी और सेनेट में भी। नवीद कमर साहब, चूंकि रूल्स का तकाजा है और उसके मुताबिक सिर्फ हमने ले करने स्टैंडिंग कमेटी को भेजना है, वो उसके ऊपर जो ना आपकी डिस्कशन फिर आप बाद में होगी, ये सिर्फ इसको प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, सिर्फ प्रोसीजर। जी बाबर अवान साहब प्लीज, मेहरबानी जी, थैंक यू जी। Thank you, Mr. Speaker. जी बिलावल साहब। से एंगेज हो रहे हैं हुकूमत से, ख़ास तौर पे जो फैटिफ का लेजिस्लेशन है, और जहाँ तक फैटिफ और नेशनल एक्शन प्लान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा और आगे जाके भी चाहेंगे कि हम उनका जो ज़रूरत है हम वो पूरा करें। लेकिन बेहतर होगा अगर पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत इस किस्म के इश्यूज़ पे कंसेंसस से बिल्स लेकर आए। और अगर आपके पास ये मौका आ रहा है जहां आपको नज़र आ रहा है कि अपोजिशन और हुकूमत शायद इस पे कंसेंसस पैदा करे, तो आपके लिए बेहतर होगा, हाउस के लिए बेहतर होगा अगर हम एक कंसेंसस बिल मिल के पेश करें और शुरू से लेके एंड तक जो प्रोसेस ही फॉलो करे। लेकिन उस प्रोसेस में हमारा एक कौमी मौक़िफ़ के लिए एक कंसेंसस वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए। तो आपसे हमारा दरख्वास्त है, हमारा बड़ा हाई पावर्ड कमेटी बना हुआ है जो मुसलसल मिल रहा है, उसके लिए टाइम फ्रेम भी मौजूद है और एक अच्छा इंडिकेशन होगा हुकूमत की तरफ से भी कि वो इस प्रोसेस में सीरियस है। अगर वो हमारा जो बातचीत आज भी चल रहा है वो उसको चलने दे, उसको मौका दे, और जैसे हम इंशाल्लाह ताला हमारा प्री एग्रीड टाइम फ्रेम के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करें, फिर आप उन बिल्स को बाबरवान साहब आप इंट्रोड्यूस करें। बाबरवान साहब प्लीज। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। ये जो कंसेंसस के साथ लेजिस्लेशन करने के लिए ही हुकूमत ने अपोजिशन की सारी जमातें और अपने कोalition पार्टनर्स को शामिल करके आपके ज़रिए से में सारे मामलात जा रहे हैं। ये जो बिल्स हैं, अगर ये मिसाल के तौर पे 4 आप मोशंस देख लें कितने दिन से पेंडिंग है। ये 1.5 साल से बाद बिल पेंडिंग थे, उस वक्त कुछ नहीं हो सका। अब पहली दफ़ा ये बिल ऑनलाइन आए हैं, यहाँ से सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कहें कमेटी कल अपना इजलास करे, परसों कंसेंसस करके बिल वापस आ जाएगा। ये प्रोसेस पूरा करना ज़रूरी है। ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिर वही होता रहेगा, डिले होता रहेगा, लेजिस्लेशन खुदा न खास्ता आगे जाती रहेगी जिस तरह 1.5 साल पहले नहीं हो सका। जी मेरे ख्याल में हम इसको ये लीगल प्रोसेस है जी बिलावल साहब भी है। हाँ जी, ओके, थैंक यू। मैं चूंकि गवर्नमेंट इसकी ख्वाहिश है कि टेबल करे, तो फिर मैंने टेबल करना है। हमें बाबर अवान साहब को पता है, वो हमारे हुकूमत में भी अपोजिशन के साथ काम करता आया है। हम जब भी लेजिस्लेशन लेकर आते थे, ख़ास तौर पे अगर कंसेंसस हमारा एजेंडा है, कंसेंसस हमारा एम है, तो हम बात करके लेकर आते हैं। अगर आप अभी जिद करेंगे कि जैसे है वैसे हमने पेश करना है, उसका मतलब है कि आप हमें ये मैसेज भेज रहे हो कि आप हमारा कंसेंसस बनाने जो हम प्रोसेस में गुजर रहे हैं उसमें भी आप सीरियस नहीं हो, उसमें भी आप नहीं चाहते हैं कि अपोजिशन का जायज़ मौक़िफ़ आए। और फिर मुझे ये पैगाम आ रहा है हुकूमत की तरफ से कि अगर वो सीरियस नहीं है तो फिर हम क्यों बैठे कंसेंसस के लिए, हम क्यों बिल के चले, वो जैसे है पेश करें, ऐसे हैं ऐसे नहीं, कोई बिलावल साहब कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं, ये लीगल प्रोसीजर है, इसको अडॉप्ट करना है, इसको अडॉप्ट कर सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है। जी आइटम नंबर 11 प्लीज। बाबर अवान साहब। I wish to introduce a bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Act Amendment Bill 2020. A bill further to amend the Companies Act 2017, the Companies Amendment Bill 2010 introduced. Item number 12. Babar Awan sir, please. Thank you, Mr. Speaker. I wish to introduce a bill further to amend
the entire Money Laundering Act 2010, the entire Money Laundering Second Amendment Bill 2020. A bill further to amend the Anti-Money Laundering Act 2010, the Anti-Money Laundering Second Amendment Bill 2020 stand introduced. Item number 13. I wish to introduce a bill further to amend the entire Terrorism Act 1997, the Anti-Terrorism Amendment Bill 2020. G, item number 13. Bilal, Baba Rawan sir. 13 is done, 14 now. 14, please. Yes, Mr. Speaker. I wish to introduce a bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 2020. A bill further to amend the Code of Criminal Procedure 1898, the Code of Criminal Procedure Amendment Bill 20 stand introduced. Item number 15. G. 15. G 15. I wish to introduce a bill for the proper management and administration of the Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 2020. A bill for the proper management and administration of Waqf properties, the Islamabad Capital Territory Waqf Properties Bill 20 stand introduced. Item number 16. I wish to introduce a bill to define and amend the law relating to the trusts, the Islamabad Capital Territory Trust Bill 2020. G. A bill to define and amend the law relating to trust, the Islamabad Capital Territory Trust Bill 2020 stand introduced. Item number 17. Ms. Munazza Hassan, Chairperson Standing Committee on Climate Change. As Chairperson Standing Committee on Climate Change, to move that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to amend the Global Change Impact Studies Center Act 2013, the Global Change Impact Studies Center Amendment Bill 2020 till today be condoned. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in presentation of report of the Standing Committee on the bill to amend the Global Change Impact Studies Center Act 2013, the Global Change Impact Studies Center Amendment Bill 2019 till today be condoned. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently motion is adopted. जी Ali Mohd Khan साहब आए 18 हो गए हाँ 18 हो गया item number 18 जी madam please Munazza Hassan. As Chairperson Standing Committee on Climate Change, to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Global Change Impact Study Center Act 2013, the Global Change Impact Study Center Amendment Bill 2020. G. The report of Standing Committee on the bill to amend the Global Change Impact Studies Center Act 2013, the Global Change Impact Studies Center will stand presented. Item number 35. G. Baba Rawan sahab. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move under Sub-Rule 7 to Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Islamabad High Court Amendment Bill 2018 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate be referred to the joint sitting for the consideration and the passage of the bill. Now I put the motion to the House. It has been moved under Sub-Rule 7 of Rule 154 of Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007, the Islamabad High Court Amendment Bill 2018 as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 19 days of its lying in the Senate be referred to the joint sitting for the consideration and passage. All those in favor say aye. Aye. All those that say no. I think ayes have it and consequent motion is adopted. Item number 36. G. Baba Rawan sahab. Thank you, Mr. Speaker. Item 36. I wish to move under Sub-Rule 7 of Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the ICT Rights of Persons with Disability Bill 2020 as
passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying before the Senate be referred to the joint sitting for the consideration and passage. Now I put the motion to the House. It has been moved under Sub-Rule 7 of Rule 154 of Rules of Procedure and Conduct of Business, the National Assembly 2007, that ICT Rights of Person with Disability Bill 2020 be passed by the National Assembly, as passed by the National Assembly and not by the Senate within 90 days of its lying in the Senate, be referred to the joint sitting for the consideration and passage. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequent motion is adopted. Item number 37. Babar Rahman sir. I wish to move under Sub-Rule 7 of Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Surveying and Mapping Amendment Bill 2020, as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate, be referred to the joint sitting for the consideration and the passage. Now I put the motion to the House. It has been moved under Sub-Rule 7 of Rule 154 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the Surveying and Mapping Amendment Bill 2020, as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 20 days of its lying in the Senate, be referred to the joint sitting for consideration and passage. All those in favor say aye. All those against say no. I think I have it, and consequently the motion is adopted. Item number 38. G, please. Thank you, Mr. Speaker. I wish to move under Sub-Rule 7 of Rule 154 of the Rules of Business and Procedure of the National Assembly 2007 that the Federal Public Service Commission Validation of Rules Bill 2020, as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its laying in the Senate, be referred to the joint sitting for the consideration and passage. Now I put the motion to the House. It has been moved under Sub-Rule 7 of Rule 154 of Rules of Procedure and Conduct of Business National Assembly sought that the Federal Public Service Commission Validation of Rules Bill 2020, as passed by the National Assembly and not passed by the Senate within 90 days of its lying in the Senate, be referred to the joint sitting for consideration and passage. All those in favor say aye. Aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the motion is adopted. Item number 31. Agha Hassan Baloch Sahab. स्पीकर साहब, मैं चेयरमैन कायमा कमेटी बराए बैन सूबाई रब्ता कौमी को असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ार की कवायद 2007 की 234 अल्फ की मकतजियात के मुताबिक जुलाई दिसंबर 2019 की मुद्दत के लिए कमेटी की मियादी रिपोर्ट पेश करता हूँ. The periodical report of the committee for the period July-December 2019, as required by the Rule 234A of Rules of Procedure and Conduct of Business in National Assembly 2007, stand presented. Item number 40, Sheikh Faizuddin, Chairman Standing Committee. जनाब स्पीकर, असेंबली सेक्रेटरी ने ना मुझे कोई फाइल भेजी है ना मेरे इल्म में है. मैं आपके नोटिस में देना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि ये फाइल क्यों नहीं पहुंचाएगी मुझे. जी जी सर, फाइल भेजे ना. असेंबली सेक्रेटरी का काम है कि मुझे फाइल भेजें. मुझे कोई ना फाइल दी गई है ना इतला दी गई है इसके बारे में. अच्छा, ये ऑर्डर ऑफ द डे घर पे जाता है. अभी आप पेश करें प्लीज, ताकि ये फिर सर कोई शेयर कहें तो मैं पेश कर दूं. मेरे पास तो फाइल ही नहीं, मैं क्या पेश करूं आपको. नहीं तो ठीक है, मैं पेश करूँ की फाइल दें ना. अच्छा सर, फाइल क्यों नहीं देती. जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप शेयर सुनना चाहेंगे या यही जो लिखा हुआ वो पढ़ के सुना दूं आपको. आइटम नंबर 40 पेश करें जी. उर्दू अंग्रेजी की गाल नहीं. चलो ठीक, मेरे को फाइल क्यों नहीं देती. आ गई फाइल. कितना है. अच्छा ठीक. सर, I, Chairman Sheikh Faizuddin, oversees Pakistani and Human Resource Development, hereby present the periodical report of the Standing Committee for the period July-December 2019 as required by the Rule
234A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly. जी, कौमी असम्बली में कार्रवाई और तरीक़ेकार के क़वायद 2007 के कायदा 234 अलिफ के मुतज़ियात के मुताबिक जुलाई दिसंबर 2019 की मुद्दत के लिए कमेटी की मियादी रिपोर्ट पेश कर दी गई। जी, आइटम नंबर 41 जनाब मोहम्मद मियाँ सुमरो वज़ीर बराए निजीकारी की जानिब से 20 जुलाई 2020 को हुकूमत की निजीकारी पॉलिसी से मुतालिक पेश करदा तहरीक पर मज़ीद बहस का आगाज़ करते हैं। अमजद अली खान साहब जी बहस का आगाज़ करें। अमजद अली खान साहब अपनी निशस्त पे आ जाएं और बहस का आगाज़ करें। जी, जी शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने मुझे प्राइवेटाइजेशन पे बोलने का मौका दिया। जनाब, मैं अपनी स्पीच की इब्तिदा जो है वो शेर से करूंगा कि पाँव होते हुए कब तक चलूं बेसाखियों पे, कब तलक दूसरों का बोया हुआ मैं काटूं, कब तलक दूसरों का बोया हुआ मैं काटूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आप 1970 के अंदर चले जाएं, जब रातों रात तमाम पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो थी वो नेशनलाइज कर ली गई और एक ऐसे निज़ाम की बुनियाद रखी गई जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था उस वक्त जनूबी एशिया के अंदर जहां पे इंडस्ट्री फल फूल रही थी। लेकिन इस फैसले ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। हम समझते हैं कि जब सरकारी मलकियत में ये इदारे आए तो मिसमैनेजमेंट, ओवर स्टाफिंग, करप्शन और फिर जो नुकसान हुआ, जो सर्विसेज का नुकसान हुआ, वो आज तक हम जनाब डिप्टी स्पीकर साहब वो आज तक हम भुगत रहे हैं। और फिर जब 1978 की बात आई और 1978 में क्या हुआ कि वो कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बहरैम, माले मुफ्त दिले बहरैम कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने शरीफ खानदान को विदाउट बिडिंग जो है वो इत्तफाक फाउंड्री भी दी और अपना ले पालिक बेटा भी बनाया। ये एक सेकंड टर्म थी जिसके अंदर हम और तुम की पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। यूं पाकिस्तान ने नए, हम समझते कि ऐसे दौर का आगाज हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
दोबारा अजान के बाद स्टार्ट करूंगा। 22 जनवरी 1991 में प्राइवेटाइजेशन का फिर दोबारा आगाज़ होता है, जिसे आज हम जमहूरियत का नाम देते हैं। तो उसमें आपके जितने भी बहुत सारे कारोबारी इदारे जो हैं वो उन लोगों को दे दिए गए जिनके अपने कारोबार तो बढ़ते गए, लेकिन जो असल कारोबारी थे वो पीछे चले गए। और अभी पिछले दिनों हमारे एक ऑनरेबल मेंबर्स ने एक बात की जी कि माफियाज के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। तो उनके लिए अर्ज किया है कि वो खुद तो माफिया का हिस्सा है। जब 1965 के अंदर फातिमा जिन्ना के साथ गुजरांवाला में जो कुछ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है, और इस पाकिस्तान ने वो भी अनदोखनाक समझते हैं। वो दुख भरे लम्हात के फातिमा जिन्ना के साथ वहाँ पे जो सलूक किया गया वो भी तारीख का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने गिरेबां में ज़रूर देखना चाहिए कि वो माफिया का हिस्सा हैं या वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए और सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं बख्शा गया, बल्कि बड़े बड़े मीडिया पे कि जजेस भी खरीदने की बात हुई, और जो कुछ अदालत के साथ हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। और फिर जनाब डिप्टी स्पीकर साहब 1992 में तकरीबन 47 के करीब यूनिट्स फरोख्त हुए। इससे कबल जो है वो 2 बैंक्स थे, और अलाइड बैंक के नाम से जो बैंक्स बिके उसे फिर इतने सस्ते दामों बेचा गया और इतनी बुरी तरह मिसमैनेजमेंट हुई कि स्टेट बैंक ने फिर उसे दोबारा वापस लेना पड़ा। पिछले फिर एक और हमारे मोहतरम फाजिल दोस्त ने बात की कि अंपायर तो अल्लाह की ज़ात है। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अंपायर ही अल्लाह की ज़ात है, वो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। लेकिन जब हम सजदों में गिर जाते हैं, NRO 1 आया, NRO 2 आया, NRO 3 आया, तो ये फिर क्या है? वो कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो फिर पहले अपनी अदाओं पे हमें गौर करना चाहिए कि या तो फिर नेल्सन मंडेला बने, या फिर जो कहते हैं कि हम वोट की इज़्ज़त को बढ़ाएंगे। वोट की इज़्ज़त को जिस तरीके के साथ आप बढ़ाना चाहते हैं वो भी सब पाकिस्तान की अवाम जानती है कि आप किसकी इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं। आप तो सिर्फ अपनी सल्तनत के दवाम और अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए जो हीले बहाने, जो हथकंडे इस्तेमाल करते रहे, वो भी पाकिस्तानी कौम बखूबी जानते हैं। और फिर वो लोग जिन्हें इस बात का दुख था कि जनरल ज़ियाउल हक का जो लेपालिक बेटा था या लेपालिक बेटा है, वो उसे लेपालिक बेटा अपना रूहानी बाप करार देता रहा है, ये भी तारीख का हिस्सा रहे। क्या वो आज इकट्ठे हैं, किस मफादात के तहत इकट्ठे हैं, एक दूसरे का दिफा करते नज़र आते हैं? और हम समझते हैं भी ये भी पाकिस्तान की अवाम जो है वो देख रही है कि वो ऐसे क्या मफादात हैं जो आज इनको दो मुतज़ाद, जबकि ऐसी ऐसी तहरीरें, ऐसे ऐसे पम्फलेट तकसीम किए गए और ज़ात पे भी ऐसे ऐसे हमले किए गए कि मियां साहब की एक पुरानी में तकरीर कल ही सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जो अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाते रहे हैं। तो ये एक साइड थी, और उसकी अदर साइड भी ये थी कि हम इन्हें सड़कों पे घसीटेंगे, लेकिन ये मफाद जो है इन्हें इकट्ठा कर गया। वो क्या मफाद है कि अपने
इक़्तिदार के लिए ये अपना वो नज़रिया जिसे कहते हैं कि करप्शन बचाओ और माल बनाओ का नज़रिया जो है वो हमेशा से ये उसके लिए ये काम करते रहें और करते रहेंगे। और इसी तरह अगर आप देखें कि कोरोना पे भी सियासत की गई, कोरोना पे इसलिए मैं कहूँगा कि सियासत और कर रहे हैं कि इनको ये मालूम ही नहीं कि लोगों का दुख क्या है। और वो लोग जो एक कमरे के अंदर 12-12, 14-14 ख़ानदान रहते हैं, इन्होंने लॉकडाउन के ऊपर सियासत की, स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर सियासत कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बेशक अल्लाह हक के साथ है। आज पूरी दुनिया ने ये माना है कि पाकिस्तान की जो प्लानिंग थी, पाकिस्तान के जो हालात थे, उसमें पाकिस्तान ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है। तो जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, चाहिए तो ये था कि ये अपने नज़रिए पे कायम रहते, लेकिन इनका नज़रिया क्या है ये भी बड़ी अजीब कहानी है कि नज़रिया इनका एक ही है कि एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ देते रहो और अपनी इक़्तिदार के लिए, जैसे कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल, ये पूरे पाकिस्तान को मुख्तलिफ सूबाइयत के नाम पे तकसीम करते रहे, इलाकाइयत के नाम पे तकसीम करते रहे, कौमियत के नाम पे तकसीम करने की कोशिश की गई। तो ये नज़रिया था। आज हम समझते हैं कि बिल्कुल कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक बिल्कुल आज गवर्नमेंट क्लियर खड़ी है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारी क्या पॉलिसीज़ हैं। और इसीलिए आज मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उसने कहा कि आएँ, आपके पास तजावीज़ हैं, आपके पास प्लानिंग है वो हमारे सामने लेके आए, ताकि वन बाय वन हम तमाम इस पार्लियामेंट को और इस पार्लियामेंट के ज़रिए गवर्नमेंट तक तजावीज़ दें। हम आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन हमें पता है कि आपका एजेंडा है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये तवक्को करेंगे कि इस ईवान के तवज्जुह से ज़्यादा हो गए हैं, 10 मिनट का टाइम था स्पीच का, मुस्बित तजावीज़ देंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब अब्दुल कादिर पटेल साहब। शुक्रिया जनाब अली। सर, सबसे पहले तो मैं अपनी स्पीच में कहूँगा कि आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, बस घबराना नहीं, मेरी तकरीर सुनिएगा, बातचीत जो मैं करूँ। सर, प्राइवेटाइजेशन हमेशा से एक अहम इशू रहा, मुख्तलिफ औकात में इस पर सैरासिल गुफ्तगू भी होती रही और होती भी रहेगी। लेकिन मौजूदा हालात में और गुजरे हुए इन 2 सालों में जब हम इस प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं तो ये प्राइवेटाइजेशन टोटल चेंज एंड तब्दील प्राइवेटाइजेशन नजर आती है। सर, हम तो 2 साल पहले बजाय कुछ बेचने के 2-4 पड़ोसी मुल्क खरीदने की बातें कर रहे थे। हमारे पास तो इतने पैसे आने थे, हमने तो ये तो हांगकांग, जापान वापान तो ले लेना था 2 सालों में। 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग रुक जानी थी 1 साल में, तो इसमें तो कोरिया आ जाता है इतने का। तो 15 अरब रुपए रोजाना करप्शन हो रही थी, वो रुक गई, तो ये नेपाल शेपाल हम खरीद देते। लेकिन ये हम बेचने पर क्यों आ गए? क्या इसी स्टील मिल के बाहर खड़े होकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल मिनिस्टर असद उमर साहब, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कैसे नहीं चलेगी ये स्टील मिल? हर हाल में चलेगी, हर तरह चलेगी, और अगर इसको प्राइवेटाइज किया गया तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जमाना वो आ गया है कि वीडियोस अब एक ऐसा मसला बन गया है जनाब अली कि कुछ छुपा ही नहीं छुपता। ये सारी चीजें मौजूद है।
आज आप स्टील मिल के फिर पीछे पड़ गए। दरअसल ये स्टील मिल नहीं, ये स्टील मिल के साथ साथ 12,000 एकड़ जमीन भी है सिंध हुकूमत की। आपने कहा जी हम गरीब नवाज, गरीब लोगों की हुकूमत, गरीबों का ख्याल। कोविड में छाबड़ी वाला कहां जाएगा? कोविड में गरीब आदमी का क्या होगा? और दूसरे ही दिन पीटीडीसी के मुलाजमीन को कोविड के ही जमाने में 500 लोगों को बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ दिए लेटर थमा दिया कि भैया कल से नौकरी पे नहीं आना, जाओ ये है हमारा कोविड। सर, कोलो फैल के तजाद का कोई एक पैमाना तो होना चाहिए ना, कोई एक पैमाना। ये बिल्कुल उलट किस तरह हो जाता है? सर, हमने कर्जे वापस करने की बातें की थी, हमने तारीखी कर्जे ले लिए, हमने नौकरियां देने की बातें की थी, वो भी करोड़ों। अब हम प्राइवेटाइजेशन के जरिए लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। एक स्टेटमेंट पर मेरे वजीर के पूरी एयरलाइन बैठ गई और अब उसका भी अंजाम पता नहीं क्या होगा। यकीनन वही होगा जो इस मुल्क का 2 सालों में हुआ है। अब पीटीडीसी के भी सयाह गाह हैं सर काफी, और उनके जो वजीर हैं माशाल्लाह उनकी ईमानदारी और उनकी शोहरत पे सबको इतना भरोसा है कि रोजवेलेट होटल से लेकर पीटीडीसी की सयाह गाहों को सबको खतरा लाहक है सर, सबको, सब चीजों को। ये मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं। जनाब अली, इश्यूज पर जब हम बात करते हैं तो हमें उसका जवाब नहीं मिलता। आपके सामने महंगाई पर बात हुई, प्राइवेटाइजेशन जैसे एक अहम चीज है उस पर बात हुई। अभी भी मेरे मौजूद रुकन ने एक तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे कम बात की और हस्ब इख्तलाफ की जमातों के कायदीन को ज्यादा बुरा भला कहा। अगर ये ट्रेंड आप चलाएंगे तो सर फिर इसका हुकूमत को नुकसान होगा, अपोजिशन को बहुत कम, बल्कि नहीं होगा। आप लोगों ने कोशिश की कि हर चीज को फोकस किया जाए। मसला यहां पाकिस्तान का, FATF का, आलमी बरादरी का हो, लेकिन आप कहते हैं कि जी वो कराची में देखो क्या हो रहा है। हर चीज को आप कराची से जोड़ रहे हैं, सिंध से जोड़ रहे हैं, उसकी कारकर्दगी से कीड़े निकाल रहे हैं। मेरे भाई, ये पाकिस्तान की कौमी असेंबली है। मैं सर आज भी देख रहा हूं कि 10 साल की रिकॉर्ड बारिश कराची में हुई 10 साल के बाद, 86 मिलीमीटर, और पूरे पाकिस्तान में हुई। हर जगह की वीडियोस हैं, हर जगह गाड़ियां तैर रही हैं। मेरे 14 MNA कराची से पाकिस्तान के हैं, 14 आउट ऑफ 21। उनको 15-15 करोड़ रुपए भी आपने दिए। आपके 4 इत्यादि MQM के भी हैं, उनको भी आपने 15-15 करोड़ दिए। चले हम 3 पीपल्स पार्टी वालों को ना दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन मेरे MNAs ने ये 15-15 करोड़ रुपए अपने अपने इलाकों में सीवरेज के निजाम पर लगाए हैं या नहीं लगाए। कराची एक मिनी पाकिस्तान है सर। 3.5 करोड़ लोग हर माह एक अंदाजे, मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 लोग आकर सेटल होते हैं वहां। वो एक मिनी पाकिस्तान है। और जब हमारे चेयरमैन ने कहा, और चूंकि आपको उनकी उर्दू पे भी एतराज रहता है, और जब वो अंग्रेजी में बात करें तो कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान है, तो अंग्रेजी में क्यों बोलता है। तो उन्होंने कहा कि जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन तक मजाक उड़ाया। अगर मजाक उड़ाने पर हम आ जाएं तो आपने ऑक्सीजन रात को निकालनी शुरू कर दी थी दरख्तों से, तो लोग रात को वॉक करने चले गए।
एक एक चीज अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, का जी बिजली क्यों महंगी हो रही, का मलेशिया से पाम ऑयल महंगा आ रहा है, नहीं आ रहा है इसलिए बिजली को पाम ऑयल से जोड़ दिया। सर आपने दुनिया के नक्शे जो हिला दिए, आपने जर्मनी जापान मिला दिया, मैं किस किस बात पर जाऊं, लेकिन मेरे ख्याल में ये मौजू फिर कभी सही। सर अभी के इलेक्ट्रिक मैं हैरान था एक मुजाहरा देखकर कि पूरी हुकूमत असेंबली के बाहर, पूरी हुकूमत वो केई के खिलाफ मुजाहरा कर रही है। मैंने हुकूमत की इतनी बड़ी वज़रा की तादाद और उनके इत्तेहादी एक छोटे से इदारे जिसको मुशर्रफ दौर में इत्तेहादियों ने मिलकर प्राइवेटाइज कराया, उसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। और गुज़िश्ता बरस जितने लोग बारिशों में जान से गए, आज तक उनका कोई हिसाब नहीं हुआ। और इस बार फिर लोग जान से जा रहे हैं। लोग पानी में डूब के नहीं मरते सर, लोग पानी में करंट की वजह से मर जाते हैं। और आप ट्वीट किए जाएं सर, अगर हमने प्राइवेटाइज करना है और अगर हालात इतने खराब हैं, और बकौल जॉन एलिया के कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो सर फिर पूरा मुल्क ही एक साथ प्राइवेटाइज कर दे, ये तो बड़ा अच्छा फिर आपको दाम मिल सकता है। हम तो मुल्क खरीदना चाहते थे ना, लेकिन अब हम उस नहज पे आ गए हैं कि शायद हमें मुल्क बेचने पड़े। जनाब आली आगे चलिए, हमने आपको मशवरा यह दिया कि यह मुनासिब वक्त नहीं, इस वक्त दुनिया में कोविड की वजह से रिसेशन है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन जो आइकन्स हैं हमारे, जो हमारे शहीदों की निशानियां हैं, उनको खुदारा औने पौने एटीएम्स को ना दिया जाए, यह हमारी सजेशन थी। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में एटीएम जल्दी में है, उनको आसपास के हालात बदलते नजर आ रहे हैं, वो अपना लगाया हुआ पैसा सूद समेत वापस चाहते हैं। आज हर रोज कराची के लोग बिजली को तरसते हैं और रोजाना बिजली महंगी होती है, बिजली मिलती भी नहीं, महंगी भी होती है। नकवी साहब का कोई नाम नहीं लेता, एक शख्स ने नाम लिया था, उसको उसके ओहदे से हटा दिया गया। पटेल साहब 10 मिनट हो गए सर आप हुक्म करें, 10 मिनट और करूं? 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अच्छा मैं समझा आप कह रहे हैं 10 मिनट और, मैं सर 5 कर दें जी। जनाब आली, कराची के जो मसाइल हैं और प्राइवेटाइजेशन के जो मसाइल हैं, इसके लिए सबको सर जोड़ के बैठना होगा। ये इस मुल्क आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठें और खामोशी इख्तियार करें। सर पीठ ऐसे उसकी तरफ ना हो, ये रूल के खिलाफ है। ये इस तरह की बातें ना करें, आपकी भी पीठ किसी की तरफ है, ये बातें नहीं करें। बिल्कुल सर चेयर की तरफ ये बातें नहीं करें, करते सर, रूल के खिलाफ है। ये आप इस तरह बात नहीं करें। सब जो है वो अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं जी। सर मैंने रूल कोट किया आपको, सर मैंने तो रूल कोट किया है। ये अपनी निशस्त पे जा रहा है तो इसकी पीठ इसी तरफ होगी अगर वो नहीं, पीछे बैठ जाते हुए नहीं सर, खड़े हुए हो, जाते हुए नहीं कह रहा आर्गेज सर, जाते हुए आते हुए छोड़ें, आप अपनी स्पीच करें, निजीकारी पे आए। खड़े हुए होते कहता पता नहीं आप क्यों नाराज होते सर। मैंने तो सही रूल कोट किया था, बहरहाल आप अपना उसका मतलब निकाल लेते हैं, इससे मेरा मतलब नहीं था। जनाब आली, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन तशरीफ रखते हैं, हमें उनसे बड़ी तवक्कुआत है। खुदा के वास्ते उनका माजी का तजुर्बा, वो इस ना तजुर्बेकार जो रिजीम आई है, जिसने मुल्क का पट्टा बिठा दिया है, जिसमें आटा चीनी दाल पेट्रोल सब गायब कर दिया, गरीब को बेरोजगार कर दिया है,
अपना वो तजुर्बा इन ना तजुर्बेकार, ना अहल, ना लायक लोगों के साथ मिलकर अपनी प्राइवेटाइजेशन, इस तरह की प्राइवेटाइजेशन करके अपने भी सियासी कैरियर को दांव पे न लगाएं। सही जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी बहुत जी। जनाब रियाज फतेहाना साहब, बाद में आप सबको पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी मिलेगा जी, पहले इस पे निजीकारी पे बहस कर लें फिर। शुक्रिया जनाबे डिप्टी स्पीकर। जनाबे वाला, इस वक्त दुनिया में दो किस्म की इकॉनमीज़ हैं, एक है कैपिटलिस्ट इकॉनमी, दूसरी है सोशलिस्ट इकॉनमी जो उर्फ़ आम में समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को ना सोशलिस्ट इकॉनमी सूट करती है, ना कैपिटलिस्ट इकॉनमी सूट करती है, हमें मिक्स्ड इकॉनमी सूट करती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ तभी आगे सर्वाइव कर सकते हैं। अब दूसरी गुजारिश मेरी है कि फ़िलासफ़ी क्या है प्राइवेटाइजेशन की। फ़िलासफ़ी प्राइवेटाइजेशन की यही है कि जो सिख यूनिट्स हैं जो खसारे में जा रहे हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जो सरकारी कंट्रोल में मुनाफे में जा रहे हैं उनको रिटेन किया जाए। लेकिन माजी में क्या हुआ, माजी में इस फ़िलासफ़ी के बरअक्स काम किया गया। जो मुनाफे में यूनिट्स जा रहे थे, बैंक्स थे, फर्टिलाइज़र कंपनीज थी, शुगर मिल्स थी, कार मैन्युफैक्चरिंग इदारे थे, तो उन तमाम चीज़ों को औने पौने दामों, लूट खसूट के ज़रिए आपस में बंदर बांट कर दिए गए और उसकी बजाय उन इदारों को रोक लिया गया अपने पास हुकूमत पर मज़ीद बोझ डालने के लिए जो खसारे में जा रहे थे। मैं यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ रुकन की याद करवाना चाहूँगा, 2007 तक पाकिस्तान स्टील मुनाफे में जा रही थी। उस वक्त कर्नल अफजल वहाँ के जनरल मैनेजर थे, मैंने खुद उस वक्त मिल को विज़िट किया है। उस वक्त मिल प्रॉफिट में थी, हुकूमत बदलती गई, 2008 के बाद वो मिल खसारे में चली गई। इसी तरह पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, इनकी जो हालत है आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें इस वक्त हालत क्या जा रही है। सफ़ेद हाथी हमने पाले हुए हैं जनाबे वाला। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं माजी की मिसाल दूंगा। मेरे हल्के में कमालिया शुगर मिल थी, ब्रिटिश प्लांट था, वाहिद प्लांट पाकिस्तान में जो गिफ्ट प्लांट था पाकिस्तान में, गिफ्टेड प्लांट, उसको भी उस वक्त के हुकूमत ने आपस में गारी रख लिया और 60 करोड़ रुपए में मिल गई, सिर्फ 60 करोड़ में। बाद में नए मालिक ने वही मिल 8 अरब रुपए में बेची। ये पोजीशन है साबका माजी की प्राइवेटाइजेशन की। जनाबे वाला, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि वक्त का तकाजा है कि मुस्तकबिल की तरफ हम देखें, पॉइंट स्कोरिंग ना करें, लड़ाई झगड़ा एक तरफ रखें। इस वक्त नेशनल इश्यूज़ हैं, इस पे हमें मुस्बत सोच के साथ नई और दुरुस्त पॉलिसीज़ की तरफ जाना है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर का विजन बड़ा क्लियर है कि मुल्क की इकॉनमी को हमने आगे लेकर जाना है। इस वक्त जनाब मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब की शक्ल में वज़ीर हैं, शहरों में पड़े हुए हैं यूनिट्स। इस सिलसिले में अगर पाकिस्तान स्टील को और पाकिस्तान PIA को भी बेच दिया जाए और रेलवे जो है इसका दुनिया के नए मॉडल जो हैं उसके मुताबिक ट्रेन जिसमें किराया चोरी होता है, ट्रेन सारी प्राइवेटाइज कर दी जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक उसको रेलवे अपने पास रखे। इससे आप देखेंगे कि रेलवे का खसारा काफ़ी हद तक दूर हो सकता है। ये पब्लिक फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट जो कि मिडिल क्लास की ट्रांसपोर्ट है उसको मजबूत कर सकते हैं। जनाबे वाला, इसके साथ साथ मैं गुजारिश ये करूँगा कि मुल्क में गुर्बत एक बहुत बड़ा मिनेस है। गुर्बत के ख़ात्मा के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पे ज़री सेक्टर को प्रमोट किया जाए, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ की इकॉनमी को और ओपन किया जाए। यहाँ दुनिया की इन्वेस्टमेंट तब आती है जब पता हो कि हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं हो जाएगी, गुम नहीं हो जाएगी, चोरी नहीं हो जाएगी, डकैती की नज़र में नहीं हो जाएगी। माजी में इसलिए भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं हुई कि जब भी आती थी फॉरेन इन्वेस्टर आता था तो हमारे यहाँ के लोग उनसे किक बैक्स, अपना परसेंटेज, अपना कमीशन, अपना हिस्सा मांगते थे। अब इस वक्त पोजीशन जो है, इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये वाहिद टाइम है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है एतमाद के साथ, उन्हें पता है कि हमसे कोई हिस्सा, किक बैक्स, कमीशन नहीं मांगेगा। आखिर में अपनी बात को मैं कंक्लूड करते हुए यही गुजारिश करूँगा कि हमें दुरुस्त सिमत पर पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन करनी है, सिख यूनिट्स को बेचना है, जो प्रॉफिटेबल यूनिट्स उनको रिटेन करना है, मिक्स्ड इकॉनमी के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना है। उससे कीमतों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी बेहतर रहता है। उसमें जो कार्टेल जो बड़े बड़े हैं उन पर हाथ डाला जा सकता है
और पाकिस्तान में मैशत मजबूत होगी तो गुर्बत का खात्मा होगा। शुक्रिया। सही जी। जी मुराद सईद साहब, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप बात करना चाह रहे थे। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये एक इशू भी चल रहा है और बड़ा अहम भी है, चकदरा चतराल सड़क के हवाले से। स्पीकर साहब, मैं पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं, तो एक तो अपने लोगों के लिए, क्योंकि कल ये इलाकाई इशू से उठ के यहाँ पे भी बड़ा डिस्कस हुआ। जी जी मैं जी चतराली साहब। अच्छा स्पीकर साहब, दो चीज़ें, एक साबिका वजीर थे, उन्होंने कहा कि ये सीपेक का हिस्सा था। तो स्पीकर साहब, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करूँ। चकदरा चतराल सड़क की उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। चतराल गिलगित बल्तिस्तान इसको सीपेक का हिस्सा बनाए, चकदरा चतराल इसको सीपेक में शामिल कराया जाए। फिर स्वात मोटरवे, स्वात से आगे आपका पिशावर से डीआई खान से जोब कुचलाक, इनकी रिकमेंडेशन पिछले साल मेरी वजारत में हमारी तरफ से दी गई है कि इसको सीपेक में शामिल किया जाए, और पाकिस्तान की तरफ से इसको अप्रूव करके फिर अब हमने अब चाइनीज साइड का जेसीसी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जो हुई, इस साल जब जेसीसी हुई तो होगी तो हम उनके जवाब का इंतजार करेंगे। एक चीज कि कल इनके एक साबिका वजीर की तरफ से कहा गया कि सीपेक का हिस्सा था। सीपेक का हिस्सा इन्होंने इवन शामिल करने के लिए रिकमेंडेशन भी नहीं दी, हमने शामिल करने के लिए पिछले साल की जेसीसी में इसको पेश किया। दूसरा कि एक और जुमात है, वो कह रहे हैं कि ये मोटरवे था और इसको ख़त्म कर दिया गया, और जो स्वात मोटरवे का दूसरा फेज बन रहा है, असल में ये प्रोजेक्ट यहां से उठा के उधर लेके जा रहे हैं। जनाबी स्पीकर, स्वात मोटरवे पिछले साल जब मुकम्मल हुआ फेज 1, तो दूसरे फेज के लिए हमारी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और आखिरी बजट आ रहा था। उस वक्त के हमारे स्पीकर जनाब असद कैसर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी और सीएम परवेज खटक से मैंने कहा कि इसकी सिर्फ फिजिबिलिटी आप दूसरी फेज की डाल दे, बाकी इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि ये भी बन जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब वक्त आ गया कि इस साल स्वात मोटरवे का दूसरा फेज भी शुरू हो जाएगा। अब चकदरा चतराल मोटरवे की मैं बात करूं स्पीकर साहब, ये हमारे दिर के एमएनएस भी बैठे हुए हैं, चतराल के मुंतखब नुमाइंदे भी है। मैं इनको बताना चाहूँ स्पीकर साहब कि इस वक्त मार्च 2021 में हम आगाज कर रहे हैं चकदरा से चतराल सड़क के डुअलाइजेशन के ऊपर, हम उस पे काम का आगाज करेंगे। रही बात मोटरवे की, तो स्पीकर साहब जिस तरह पिछले साल पहली दफा मगरिबी रूट के ऊपर अमली काम भी हमने शुरू किया, जो नई सड़कें शामिल करनी थी वो रिकमेंडेशन भी हमने दे दी, तो इसी तरह हम इस साल इसके फिजिबिलिटी के ऊपर काम शुरू कर देंगे चकदरा से चतराल तक, और ये भी हम कर रहे हैं स्पीकर साहब। मैं इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूं स्पीकर साहब कि हमारे इलाके खुसूसन चतराल, दिर अपर, दिर लोअर, फिर उसके साथ बाजोड़, फिर हमारा डीआई खान, कोहाट से डीआई खान जोब कुचलाक, ये वो इलाके हैं स्पीकर साहब, और आपका बलूचिस्तान से खुद ताल्लुक है, ये वो इलाके हैं जो हमेशा महरूम रहे हैं। ये इलाके महरूम रहे और इनकी तरक्की का किसी ने नहीं सोचा था। स्पीकर साहब, इनकी रिकमेंडेशन सीपेक में पिछली जेसीसी में हमने शामिल किए हैं, और इंशाअल्लाह चाइनीज साइड का वेट हो रहा है, उसको शामिल किया जाएगा। मोटरवेज की फिजिबिलिटी के ऊपर चकदरा से चतराल तक हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं, और मैं पूरे इसके पुराना जो रिकॉर्ड है पीएसटीपीस वगैरह का मैं वो लेके आया हूं। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो उसके ऊपर भी मैं बात कर सकता हूं, लेकिन स्पीकर साहब आज मैं इस ऐवान की तरफ से अपने दिर लोअर, अपर, चकदरा, चतराल उन तमाम गैरतमंद पुख्तूनों को ये बताना चाहता हूं कि सीपेक में हमारी तरफ से इसकी रिकमेंडेशन जा चुकी है, और मोटरवेज की फिजिबिलिटी के ऊपर इस साल हम काम शुरू कर देंगे, और मार्च में डुअलाइजेशन की इस सड़क के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। शुक्रिया जी। एहसन इकबाल साहब, एक मिनट, एहसन इकबाल साहब के बाद। जनाब स्पीकर, दे रहे हैं आपको, सबको मिलेगा जी, पॉइंट नाम आए हुए हैं सबके मेरे पास। ये जो ऐवान है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है,
और ये तवक्को की जाती है कि यहाँ पर जब कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमत का नुमाइंदा स्टेटमेंट देगा तो वो हकाइक पे मबनी देगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो वज़ीर कम्युनिकेशन के हैं, इन्होंने मुझसे पहले भी मेरे बारे में बात की, यहाँ आने से पहले और मेरी मौजूदगी में भी मुसलसल मिस स्टेटमेंट्स करते रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूँ कि सी पैक के अंदर गिलगित चित्राल चकदरा रोड को छठी जेसीसी मीटिंग के अंदर दिसंबर 2016 में शामिल किया गया था। ये उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद और मानसरा मोटरवे को भी सी पैक के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर शामिल कर लिया गया था। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि सी पैक में चित्राल और ये चकदरा और दीर की जो मोटरवे है, इसके ऊपर एनएचए ने प्रायोरिटी के ऊपर डिजाइन शुरू की और इसके एक फेज को चाइनीज साइड को हमने उसकी फीजिबिलिटी जमा करा दी थी ताकि उसकी फंडिंग हासिल करके उस पर काम शुरू किया जा सके। मैं ये बात भी ऐवान के रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि दीर चित्राल चकदरा रोड के लिए जो पीएसटीपी 2018-19 इस ऐवान से मंजूर करके मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी, उसकी न्यू स्कीम्स में पहले नंबर के ऊपर दीर चित्राल चकदरा मोटरवे का मंसूबा शामिल था। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत ने उस पीएसडीपी को रिवाइज किया तो कुल्हाड़ा चला के दीर चित्राल चकदरा मोटरवे मंसूबे को पीएसडीपी से निकाल दिया, जैसे कि बहुत सारे दूसरे मंसूबे इन्होंने निकाले। मैं ये बात भी रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद बनना था, ये 2018 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो 2020 तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान से जो कोयटा की ड्यूलाइजेशन है, उसकी अलाइनमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथों हो चुकी थी। और ये बात भी बताना चाहता हूं कि बलोचिस्तान के अंदर जो बेला अवारान सड़क है, इसको भी पीएसडीपी 2018-19 के अंदर शामिल किया गया था ताकि साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का दरवाजा खुल सके। और ये बात भी रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि गवादर से कोयटा तक 650 किलोमीटर हाईवे भी हमारी हुकूमत ने 3 सालों के अंदर मुकम्मल करके बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों को खोल दिया। और ये बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि गवादर से खुजदार और रत्तो डेरो की शाहराह भी हमारी हुकूमत का तोहफा थी बलोचिस्तान के लिए, जिसने उनके अंदर तरक्की का एक नया दौर शुरू किया। बजाय ये कि यहाँ पर ये हर चीज का जवाब ये दें कि जी वो बुरा तो हम ये तो वो बुरा, भाई आप उन चीजों को आगे लेकर चलते, आप उन चीजों को आगे लेकर चलते। और जनाब स्पीकर, आज आपने मुझे मौका दिया है और ये वजीर साहब बैठे हैं, पिछले साल फरवरी 2019 में ये वजीर मौसूफ ने टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आसन इकबाल ने मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर 50 अरब रुपए का कमीशन खा लिया है। और इन्होंने ऐलान किया कि हम जीआईटी बना रहे हैं, उसके अंदर आईएसआई शामिल होगी, उसके अंदर आईबी शामिल होगी, उसके अंदर तहकीकाती एजेंसियां शामिल होंगी और हम दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। मैं मुंतजर का आज जुलाई 2020 खत्म हो गई है। जनाब स्पीकर, मैं आपको यह कहता हूं, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा कर लें, आईएसआई को इकट्ठा कर लें, एमआई को ले आए, आईबी को ले आए, एफआईए को ले आए,
अपनी निगरानी में JIT बनाएं। और अगर मुल्तान सक्खर मोटरवे के ऊपर मेरा ये वजीर बैठा है, ये अल्लाह के नाम यहां पर शाहिद हैं, ये जवाब दे। मैं खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आसन इकबाल ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। और ये भी खड़ा होकर यहां पर जवाब दे कि अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा है, ये बयान दे कि आसन इकबाल ने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है, और अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला इसकी नस्लों को गारत कर दे। जी मुराद सईद साहब, जी मुराद सईद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे कोई सियासी तक, अब मैं एक एक सवाल का जवाब तो सारे दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे बात की थी कि चकदरा चतराल सड़क के हवाले से 2 बातें हो रही है। एक ये कि सीपेक का हिस्सा था। जनाब स्पीकर, जनाब बात करने दें, मैं कोई आपकी पूरा मौका दें जी बोलने का, आपस में बर्दाश्त के साथ, तहम्मुल के साथ बातें सुने। जी स्पीकर साहब, पहली बात इन्होंने ये की कि 2016-17 में इनका आखिरी साल का PSDP आपके सामने रखता हूं इनकी तरफ से, और ये मैं कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और NHA का पूरा रिकॉर्ड लेके आया कि 2 चीजें जो हो रही है, और भी दे रहता हूं कि ये बात हो रही थी कि ये मोटरवे था, नंबर 2 कि ये सीपेक में शामिल था। क्योंकि पिछले साल जब मैं JCC में गया तो मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो चकदरा चतराल में खुद दे चुका हूं स्पीकर साहब, तो 2 सीपेक में शामिल कर दिया था। अभी भी सीपेक में शामिल नहीं है, रिकमेंडेशन गई है और मुराद सईद के सिग्नेचर से गई है स्पीकर साहब। दूसरी बात, और मैं लेके आया हूं स्पीकर साहब अपने पास, दूसरी बात स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि हमने यहां पे मोटरवेज की मैंने बात की थी, इनकी तरफ से ये आखिरी साल का PSDP है, PSDP नंबर 118, मैं कम्युनिकेशन डिवीजन की बात कर रहा हूं, इसमें ये वाइटनिंग है इस सड़क की, और इन्होंने कहा कि हमने निकाला है ये 2021 की PSDP है और इसमें 104 नंबर पे चकदरा चतराल शामिल है स्पीकर साहब। ये दोनों मैं आपके हवाले कर देता हूं। अब मैं आता हूं स्पीकर साहब, इन्होंने सीपेक के हवाले से भी बात की और इनके इल्जामात के ऊपर भी मैं आता हूं, और पूरे में तफसीलात आज ऐवान के सामने अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं ऐवान के सामने भी रखूं। स्पीकर साहब, पहली बात ये कि हम अपोजिशन में थे, क्या वजह थी कि परवेज खटक उठते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको यहां पे कोई इजाजत भी नहीं देंगे अगर आप हमारी सूबे को इग्नोर करेंगे। क्या वजह थी कि सवाबी में उस वक्त के खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असद कैसर तमाम पार्टियों को इकट्ठा करते हैं, हम सवाबी में इमरान खान उस वक्त सवाबी में जलसा करते हैं और मुतालबा एक होता है कि चतराल GB, चकदरा चतराल, कुहाट डीए खान जोब कुचलाक मगरिबी सड़क, क्योंकि शॉर्टेस्ट रूट था। आपने सीपेक में सिर्फ वादे किए थे, मीटिंग में बैठते थे, लेकिन सीपेक के जो डॉक्यूमेंट सामने आए उसमें नहीं था। हम क्यों जलसे ऑर्डर नहीं कर रहे थे? आपने शामिल नहीं किया। इस वक्त जनाब स्पीकर, कुहाट डीए खान सड़क उस वक्त भी मोटरवे मंजूर नहीं हुआ था। अभी हमारे दौर में उसकी फिजिबिलिटी के ऊपर काम हो रहे हैं, तो मौसूफ ऐलान कैसे कर सकते हैं? हम अभी फिजिबिलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमने मंजूरी दी है उसकी। स्वात मोटरवे की दूसरी फेज की कमर्शियल फिजिबिलिटी हमने खुद की, और इस साल की PSDP में हमने वो प्रोजेक्ट रखा है कि वो हम मोटरवे बनाने जा रहे हैं। चकदरा चतराल पिछले साल मैं खुद सीपेक में JCC में बैठ के उसकी रिकमेंडेशन देता हूं चाइनीज साइड को कि पाकिस्तान की तरफ से ये सीपेक में शामिल कर दे, तो आपने कहां पे मंजूरी दी थी? जनाब स्पीकर, डीए खान जोब कुचलाक, अभी तो हमने उसके ऊपर काम ही शुरू नहीं किया। पिछली JCC में उसकी मंजूरी तो पिछली JCC में हो गई। आपने कौन से बैठ के जो भी बंदा बात करे कि पाकिस्तान कब बना था, कहते कि नवाज शरीफ ने बनाया था, ये सब उठ जाते हैं। कोई भी कहे कि ख्वाब किसने देखा था पाकिस्तान का, कह रहे कि नवाज शरीफ ने देखा था। जनाब स्पीकर, ये चीजें छोड़े और मैं आपको यहां पे ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके हवाले करता हूं। स्पीकर साहब चैलेंज करते हैं, इसको चैलेंज कर दे, लेकिन खुदारा मैं यहां पे अपने लोगों के लिए, दिरलुअर, अपर और चतराल के लिए खड़ा हुआ था कि आपने तो सीपेक में रिकमेंडेशन तक नहीं दी, वो मेरे सिग्नेचर से गए। स्पीकर साहब, हमने क्वाड ये खान की फिजिबिलिटी बना दी, पूरा गिलगित से लेके मगरिबी रूट हमारे पसमानदा जुनूबी अजला, फिर बलूचिस्तान की सड़कें, ये तमाम कौन कर रहे हैं? हमारे दौर में हो रहा है। अगर मैं आपकी तरह फीते नहीं काटता, रोजाना फीते काट के, क्योंकि ये मेरे पैसे से थोड़े बन रहे हैं,
स्पीकर साहब 2 साल इनके आखिरी और 2 साल हमारे आखिरी पहले हमने क्या किया स्पीकर साहब? 48% इनसे सड़कों की एग्जीक्यूशन हमारी ज्यादा हुई है, 48% पहले 2 साल में। स्पीकर साहब अब मैं आता हूं मौसूफ के बातों के ऊपर। मैंने 5 सवाल किए थे स्पीकर साहब और आज तक मैं इंतजार कर रहा हूं। पहला सवाल मेरा यह था कि जावेद सादिक का क्या किरदार था इस प्रोजेक्ट के मंजूरी में? जनाब स्पीकर, यह सवाल मैंने कोर्ट में भी किया। सुने आप, सुने 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 खामोश रहें, खामोश, सुने सुने हौसला 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 खामोशी से सुने, खामोशी से सुने। देखिए डिबेट हो रही है, डिबेट को डिबेट की तरह लें, खामोशी से अब सुने। स्पीकर साहब आगे सुनिए। देखिए सच में बड़ी ताकत होती है। अब मैंने एक जुमला बोला, कुर्सी से उठ गए। स्पीकर साहब खामोश रहें, नारेबाजी ना करें। मैंने पहला सवाल ये किया था कि जावेद सादिक का इसमें क्या किरदार था। मैं आज ऐवान के सामने भी पूछ रहा हूं कि जावेद सादिक का इसमें क्या किरदार था। दूसरा सवाल मैंने ये किया कि सीपेक का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था। सीपेक का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन होता है। इनकी हुकूमत बनती है 5 जून 2013 को और 5 जुलाई 2013 को कंपनी जाके साइन करते हैं। 2015 में सीपेक एग्रीमेंट आ रहा है, 2015 में टेंडर होना है, 2013 में कंपनी के साथ साइन करके एग्रीमेंट दे दिया, एमओयू कर लिया। तीसरा मेरा सवाल यह था कि आप तो प्लानिंग के मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, वो अगर थे तो आप उसके ऊपर क्यों सिग्नेचर कर रहे थे? जब एमओयू एनएचए ने नहीं शुरू किया, इनिशिएट नहीं किया, जब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने नहीं किया, तो आप कैसे खुद जाके जावेद सादिक जैसा बंदा किसी को उठा ले, उनको कहे कि फ्लैग कंपनी के पास भी चले जाए? मतलब बैरूनी मुल्क दौरा हो रहा है स्पीकर साहब, और आप मुल्क के बादशाह की बजाय, सदर की बजाय कंपनी के पास चले जाए और वहां पे एमओयू करने के प्रोजेक्ट आपका हो गया। ये कहां पे होता है स्पीकर साहब? फिर उसके बाद एक और सवाल था, इन्होंने जवाब दिया था टीवी में मुजीबुर रहमान शामी के प्रोग्राम में। इन्होंने कहा कि असल में वो नवाज शरीफ ने मुझे कहा था कि साइन कर लो। मतलब ये भी अब उनकी तरह बेटों से सवाल हुआ था नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद से पूछो। इन्होंने भी अपने लीडर के ऊपर डाल दिया कि उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछते हो? प्रोग्राम में कहा है कि उससे पूछो, उसने मुझे कहा था कि साइन कर दो। फिर आगे सुनिए स्पीकर साहब, मेरा चौथा ये सवाल था कि 242 अरब और 258 अरब एक प्रोजेक्ट की कास्ट थी, वो आप क्यों लेके गए 292 अरब तक, और फिर 16-18 अरब तकरीबन जो है वो आपने एग्जेम्पशन वगैरह दे दी? मैंने ये सवाल किया था, मैंने पूछा था ये 50 अरब किधर गए? स्पीकर साहब इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस किया और ये सोच रहे थे कि मुराद भाग जाएगा। मैंने जवाब भी दिया और उल्टा सवाल पूछे, 2-3 दफा इनको बुलाए, ये कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पीकर साहब नारेबाजी ना करें, नारेबाजी नहीं करें, स्पीकर साहब बिल्कुल फिर उसके नारेबाजी ना बाद करें। सुने, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट में फैसला आता है, फैसला आता है कि चूंकि इस केस को आपने परसू नहीं किया लिहाजा खत्म, आपका डिफेमेशन खत्म। आपने तो खत्म कर दिया, मैंने नहीं खत्म किया। मैंने फिर वीडियो तैयार करी, आपसे फिर सवाल पूछे और आपसे पूछे कि मुझे इसके जवाब दीजिए। स्पीकर साहब अब आते हैं डेट कमीशन के ऊपर। स्पीकर साहब मैं चूंकि इनसे सवाल करता हूं और ये सीधा चले जाते हैं कहीं और पे, मुल्कों के नाम लेते हैं कि मैं ताल्लुकात खराब कर रहा हूं। जनाब मैं तो आपसे, आपने जो पाकिस्तानी कौम को 50 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप उसका क्यों जवाब नहीं देते? मैं पूछ रहा हूं कि जावेद सादिक जिस तरह के शहबाज शरीफ का, उसका भी फ्रंटमैन था, उसके लिए काम कर रहा था, इसमें आपके लिए किरदार अदा किया, नवाज शरीफ के लिए किया, किसके लिए किया? मेरा यह सवाल है। तीसरा ये कि एनएचए और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री एक प्रोजेक्ट, एक एमओयू इनिशिएट नहीं करती, आप प्लानिंग में बैठे हो, जाके वहां पे साइन कर लेते हैं, 15 में टेंडर होने, 13 में ठेका दे दिया। ये कहां पे होता है स्पीकर साहब? ये कहां पे होता है स्पीकर साहब? इन्होंने किया है। और स्पीकर साहब रही बात इसकी, ये कहते हैं कि डेट कमीशन, मैं भी इंतजार कर रहा हूं और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं स्पीकर साहब, आप यहां पे रूलिंग दे दे। आप पूछ ले कि जो डेट कमीशन ने गवाहान सामने पेश हुए थे, मुझे इंफॉर्मेशन है, मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि कंपनी ने क्या जावेद सादिक का नाम वहां पे पुकारा है कि नहीं पुकारा। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि $15 मिलियन उस प्रोजेक्ट में किसको मिले हैं। मुझे ये भी इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया। स्पीकर साहब लेकिन रिटर्न रिपोर्ट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा
क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन है, मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट लेके आए ताकि आपके डेट कमीशन में जिस तरह रोजाना आप तकरीरें करते हैं, कौम को पता चल जाए कि किस तरह आपने कौम के साथ ज्यादती की। आखिरी बात स्पीकर साहब, एक और चीज की गई कि हमने बड़े मोटरवेज मंजूर किए थे। कोई भी सड़क का नाम ले लो, मौसूफ कहते हैं कि हमने मंजूर कर दिया था। स्पीकर साहब, अगर मंजूरी की बात है, मैं आपको एक चीज बताऊं कि इस पीएसडीपी में और 5-7 जो हमारा पीएसडीपी प्लस प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, स्पीकर साहब अगले 20-30 साल तक जो सड़कें पाकिस्तान में बनेगी, फिर आप कहोगे कि मुराद सईद ने की थी। हमने तो अमली किया, आपने क्या किया था स्पीकर साहब? डीआई खान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, कोहाट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये 50 अरब का आपका हुआ, लुटा दिया, आपके ऊपर लुटा दिए। ये बनू गए स्पीकर साहब, बनू में कहा कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, फिर स्वात चले गए स्पीकर साहब। और वो मंजर मैं नहीं भूलता, स्वात में ग्रासी ग्राउंड में खड़े थे, कहते कि मोटरवे इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, कालाम तक जाएगा, चतराल तक जाएगा, पता नहीं किधर किधर तक जाएगा। और ऐलान किया स्पीकर साहब, मोटरवे हमने बनाया, कालाम सड़क हमने बना दी, चकदरा चतराल को मोटरवे हमने दे दी, चतराल जीबी को हम देंगे इंशाल्लाह मोटरवे, कोहाट ये खान की हमने मंजूरी दे दी, ये खान जो गुजरात हम बना रहे हैं, क्वेटा से फिर कराची तक जा रहे हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान का मगरिबी रूट का ख्वाब हम पूरा कर रहे हैं। स्पीकर साहब, ये दावे और ये जो झूठ होता है ना स्पीकर साहब, इस ऐवान के अंदर मैंने सिंपल सी एक बात की थी और मैंने रिकॉर्ड लेके आया था। आप यहाँ पे खड़े होके जिस तरह के रोजाना बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन लोगों के सामने करे जो आपका जवाब नहीं दे सकता, उन लोगों के सामने करे जो आपके झूठ नहीं पकड़ सकता। मैंने आपके मुंह पे आपका झूठ पकड़ा, आप कोर्ट से भाग गए थे। मैं फिर आपको कहता हूं कि कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट छोड़े, सुप्रीम कोर्ट आ जाए, मैं आपका सामना करूंगा और मैं साबित करूंगा कि किस तरह आपने मेरे मुल्क के अरबों रुपए को नुकसान पहुंचाया था। स्पीकर साहब, सिर्फ ये नहीं, सुनिए, आखिरी सुनिए स्पीकर साहब, अब मौसूफ ने एक बात की कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, अल्लाह के नाम है। स्पीकर साहब, डरे अल्लाह से। मैंने सिर्फ ये नहीं, इनके जो पाकिस्तानी कौम का पैसा उनके ऊपर लुटाया गया, मैंने इनके ऊपर भी नैब में केसेस किए हैं, मैंने वो भी दिए हैं। स्पीकर साहब, मैं इस तरह पीठ पीछे से वार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, आपके सामने कह रहा हूं कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने आपके भाई को बुलाया, पहले टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया, वो चेयरमैन का टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन भी मैंने निकलवाया, और फिर कहते हैं कि हार्टिकल्चर के ठेके देने हैं। किसको देने हैं स्पीकर साहब? कोई टेंडर नहीं, कोई यहाँ पे कोई उसकी भूली नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई पेपरा नहीं। शहबाज शरीफ के मिनट पे मेरे सामने मैंने केस में दिए हैं कि वो कहते हैं कि लुटा दो इनको, ऊपर इनको दे दो। ये खिदमत कर रहे थे स्पीकर साहब उनकी, ये खिदमत करते हैं। इसलिए क्या होता है स्पीकर साहब कि खुद भी ये मैं कभी कभार सोचता हूं स्पीकर साहब, अभी जिस तरह जज्बाती हो कि यहाँ पे आ गए कि रिकॉर्ड नहीं होगा, मैं रिकॉर्ड हमेशा फिंगर टिप्स पे याद रखता हूं। स्पीकर साहब, ये मैं हमेशा सोचता हूं स्पीकर साहब कि क्या वजह है कि अगर एक बंदे ने अपने लिए इतनी बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हुई है, तो मैं तो उसकी कब्र में नहीं जाऊंगा। मैं क्यों उनको सपोर्ट कर रहा हूं, या कोई और उनको क्यों सपोर्ट करेगा? कि अगर उनकी करप्शन के केसेस है तो वो जवाब दे। मैं इसके ऊपर सोचता था, मैं हमेशा पानामा केस को देख के भी सोचता था कि यार कैसे लोग होते हैं कि लूटा किसी और ने है, उनके बच्चों को नवाजा है, बाहर जायदादें बनाई है, और यहाँ पे आके ये अपने कब्र में जाएगा। अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों तबाह करते हैं? स्पीकर साहब, बाद में पता चला कि शरीफ कोई इस तरह नहीं होता, टाई और सूट लगा के यहाँ पे आ जाते हैं, 2-3 अल्फाज अंग्रेजी के बोल लेते हैं और इस तरह बड़ा खुद को अरस्तु समझने लगते हैं कि मैं ठीक हूँ। स्पीकर साहब, हकीकत ये है कि भाई को ठेके नवाजे गए, रिकॉर्ड है, केस मैं दे चुका हूँ। और रही बात ये कि मुल्तान शक्कर में अगर 1 रुपये की चोरी हुई, स्पीकर साहब, क्या नेब में ये केस नहीं चल रहा? क्या ये मैंने बनाया है? नेब में केस तो मेरे दौर से पहले बन चुका था, आपकी हुकूमत थी, ये चीज नेब में चली गई थी। ये केस जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन ली, मैंने तो ये FIA को ये केस भेजा था, मुझे तो वहां से पता चला कि इन्हें में भी केस चल रहा है, वहां पे जाके आप जवाब दे दे। और मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट लेके चले स्पीकर साहब। और एक और चीज, मैं यहाँ पे एक और कुल्लम कुल्ला दावत देता हूं, कभी कभार यहाँ पे इनका अपोजिशन लीडर, पहले तो ये बताए स्पीकर साहब कि क्या अपोजिशन लीडर आप लोगों ने बदल दिया, कुर्सी भी बदल दी है, यहाँ पे किसी और को अपोजिशन लीडर का दर्जा दिया गया है, तो क्या वो छोड़ गए हैं? उसकी भी मुझे जवाब मिलना चाहिए। लेकिन मैं इनसे पूछता हूं
कि इनके शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि जावेद सादिक मेरा फ्रंटमैन है और मैं उसके ऊपर डिफेमेशन करूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके सवालों का जवाब देगा। आप एक काम करें, मैं कह रहा हूं कि आपका फ्रंटमैन था, मुझे उस केस में शामिल कर दे। जो डिफेमेशन आप कह रहे कि मैंने किया है, अगर किया है मुझे बुलाए, मैं आपको साबित करके दूंगा। जिस तरह ये जो बंदा बैठा हुआ है जो अब यहाँ पे उंगलियां हिला रहा था, जिस तरह मैंने इसको एक्सपोज किया, इस तरह शहबाज शरीफ का तमाम रिकॉर्ड सामने लेके आऊंगा। अपनी बात स्पीकर साहब इसी पे खत्म करता हूं स्पीकर साहब, कि इनकी कोई भी गुफ्ती चीज हो, अगर हाउस में आके इस तरह झूठ बोला जाएगा वो गलत है, और जो कुछ मैंने कहा उसका रिकॉर्ड मैं आपके हवाले करता जा रहा हूं। सही जी 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 पर्सनल एक्सप्लेनेशन दें जी एहसन इकबाल साहब। स्पीकर, मैंने बड़ी सिंपल सी बात की थी। मैंने कहा था कि मुझ पे वजीर मौसूफ साहब ने, शायद ये मेरी ज़बान नहीं समझे, इनको शायद कादर पटेल साहब की ज़बान ही समझ आती है। मैंने तो सादा उर्दू में ये कहा था कि अगर आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे खड़े होकर नारेबाजी ना करें, आप नारेबाजी नहीं करें, बिल्कुल। आप खड़े होकर ये कहें कि मैंने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है और मैं अपने इस इल्ज़ाम में अगर झूठा हूं, अगर मैं गलत हूं, तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। और मैंने यहां पे खड़े होकर कहा कि अगर मैंने इस मंसूबे में 5 रुपए भी कमीशन लिया हो तो अल्लाह ताला की मुझ पे लानत हो। ये एक सिंपल बात की थी। अच्छा, अब इन्होंने चूंकि सवालात उठाए हैं, मैं उन सवालात का जवाब देना जरूरी समझता हूं ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए। पहली बात यह कि जनाब स्पीकर, हम बजाय ये कि बहस दर बहस करें, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेफरेंस बनाएं और जो सीपैक की पार्लिमानी कमेटी है उसको रेफर करें, ये डिटरमिन करने के लिए कि जो दीर चतराल चकदरा रोड है ये किस वक्त सीपैक के अंदर शामिल हुई है। क्या मैं सच्चा हूं कि हमारे दौर में उसकी मंजूरी हुई है या ये वजीर मौसूफ सच्चे हैं कि इनके दौर में हुई है? वो आपको, मुझे भी दे रहे हैं पेपर्स, आपको भी दे देंगे, आप उसमें देख लीजिए। लिहाजा ये आप मुख्तसर करते हैं जी, आगे चलते हैं। कमेटी को दीजिए या खुद इसको डिटरमिन करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, अब इन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। ये सवालात इन्होंने जो उठाए हैं बेहद जरूरी है कि इनका जवाब दिया जाए। अब खामोशी से सुनो, इनको खामोश कराएं। आपस में बातचीत ना करें, हौसले और सब्र के साथ एक दूसरे को मौका दें बात करने का। जी एहसन इकबाल साहब। जनाब स्पीकर, ये इन्हीं बहतानों की वजह से जो झूठे इल्जाम इस बेशर्मी के साथ लगाते हैं, उनकी नहुसत है कि इनकी हुकूमत दिन ब दिन नाकाम हो रही है। हकायक ये हैं कि जिस MOU का ये हवाला दे रहे हैं 2013 में जो साइन हुआ था, वो सखर मोटरवे का टेंडर नहीं था। वो ये MOU था कि जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की, उसने प्रो बोनो ऑफर की, नॉन बाइंडिंग ऑफर की कि हम कराची से लाहौर मोटरवे के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं at no cost to government of Pakistan and non-binding feasibility study जिसकी हुकूमत पाकिस्तान पे कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं होगी। आप मुझे बताइए, who would refuse such an offer कि अगर एक सबसे बड़ी चाइना की जो नंबर 1 कंपनी है वो कहती है कि हम at our own cost कराची से लाहौर मोटरवे की फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं, तो वेलकम कोई आके कर सकता है। जो मुल्तान सखर मोटरवे है जनाब स्पीकर, ये मुआहदा हुआ 2015 में, इसका ठेका हुआ और 2014 के अंदर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि चीन की हुकूमत 3 कंपनियों का पैनल देगी, चाइना की हुकूमत 3 कंपनियों का पैनल देगी। वो 3 कंपनियां बिडिंग के अंदर हिस्सा लेंगी
अब इनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है। नारेबाजी ना करें, आप बैठ जाएं, ये सच सब्र नहीं के सुनना साथ, चाहते। तहम्मुल के साथ, सबको टाइम मिलेगा। जनाब इस तरह नहीं करें। अंदर कंपनी जैद या बकर पे इन्हें एतराज है तो ये जाके चीन के सदर से या चीन के वजीर आजम से पूछें कि जनाब आपने इस कंपनी का पैनल में नाम क्यों डाला था। वो कंपनी का नाम ना हुकूमत पाकिस्तान ने तजवीज़ किया, वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी थी जिसका चाइना की हुकूमत ने पैनल में नाम दिया। उसके बाद जनाब बिडिंग हुई, उस बिडिंग के अंदर जो लोएस्ट कंपनी आई उसको वो टेंडर दिया गया। अब इनका ये एक दूसरा एतराज है कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्यों रिवाइज हुई। जनाब जो PC1 है वो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग तैयार नहीं करती। अगर उस PC1 की कॉस्ट रिवाइज हुई तो वो इसलिए हुई कि उसका स्कोप बदला और वो इनकी वजारत ने तैयार की, तो ये अपनी वजारत से पूछें जाके कि उसका स्कोप क्यों बदला गया, और ये चाइना से पूछें कि उस कंपनी को पैनल में क्यों शामिल किया गया। इन्होंने, सर आखिरी बात, इन्होंने पाकिस्तान और चाइना के CPEC मुआहदे का जो सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था उसको जब मुतनाज़े बनाया, उसके ऊपर झूठे इल्जामात लगाए तो चीन की कंपनी मजबूर हो गई कि उसने अपने मिनिस्टर के खिलाफ बयान जारी किया, जो कभी दुनिया में नहीं होता, कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी कंपनी है चाइना की, उसने अपने मिनिस्टर को झूठा करार दिया कि ये झूठा इल्जाम लगा रहा है, और इन्होंने पाकिस्तान की बदनामी कराई। और फिर इस नारेबाजी ना करें, बिल्कुल बिल्कुल ये नारेबाजी ना करें। मिनिस्टर के बयान को लेकर नारेबाजी बिल्कुल ना करें, गौर से सुने। अमेरिका की नायब वजीर खारजा ने जो CPEC के खिलाफ बयान दिया उसकी बुनियाद मिनिस्टर कम्युनिकेशन का बयान था कि CPEC के मंसूबों के अंदर करप्शन हुई है। जी, तो इन्होंने बहुत शुक्रिया जी पाकिस्तान जनाब, को नहीं चाइना की दोस्ती को बदनाम किया है सिर्फ अपनी सियासत के लिए। जी अब्दुल अकबर चित्राली साहब, जी अब्दुल अकबर चित्राली साहब, शुक्रिया दे आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा हूं जी। हाउस इन ऑर्डर करें जी। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुख्तसर चित्राली साहब, फिर बहुत से लोगों को और भी मौका देना है, मुख्तसर बयान। जनाब स्पीकर, चेकेदारा चित्राल रोड में पहले भी बजट स्पीच में ये बात की थी और मेरे भाई विफाकी वज़ीर मवासलात भी मौजूद थे कि चित्राल शांदूर और शांदूर गिलगित पौने 17 अरब रुपए दोनों के लिए रखे गए हैं, लेकिन चेकेदारा चित्राल ये CPEC में शामिल नहीं है। उस वक़्त भी मैंने कहा था कि इसको इसमें शामिल किया जाए। JB वाला तो शामिल है, लेकिन हाँ नहीं, वो तो है, मुझे चित्राल शांदूर गिलगित ये शामिल था, और चेकेदारा चित्राल ये शामिल नहीं था। मैंने उस वक़्त कहा कि इसको भी इसमें शामिल किया जाए। उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर कि अगर चित्राल से शांदूर तक और शांदूर से गिलगित तक जो CPEC का मुतबादिल रास्ता हम बना रहे हैं और दरमियान में चेकेदारा और चित्राल ये CPEC का हिस्सा ना हो और ये और किसी कंपनी के ज़रिए से हम इसको बनाएं तो ये जोड़ नहीं खाएंगे दोनों रास्ते आपस में। और ये चित्राल सिर्फ चित्राल का रास्ता नहीं है जनाब स्पीकर, ये बाजावल, देर लवर, देर अपर, मुराद सईद ने पूरी तफसील बयान की है 2 दफा जी। चित्राल अपर और इसमें फिर गिलगित का इलाका भी शामिल है, उनके लिए भी आमद रफ्त का एक जरिया है। जनाब स्पीकर, हम यहाँ एहसान किसी पर नहीं जताना चाहिए। साबिका हुकूमतों ने भी किया है या उससे पहले हुकूमतों ने भी किया है। उसकी वजह यह है कि ये सारा जो तरक्याती काम हो रहे हैं PSDP में जो शामिल किए जा रहे हैं ये कर्ज़ों पे हैं, और कर्ज़े जो हैं हम अदा करते हैं, टैक्स हमारा है। सही। और जनाब स्पीकर इस वक्त मेरे भाई ने विफाकी वजीर ने जो कहा कि हमने पॉइंट ला रहा हूँ जी, इन्होंने कहा कि हमने इसको शामिल किया है, इस पर मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये बात हकीकत यह है कि पूरे डिवीज़न में एक बेचैनी है
और उसको साबित करना है, इंशाअल्लाह इसको हकीकत बना के दिखाना है, इसको इस पर अमल करना है। एक बात। दूसरी बात यह है, जो सीपेक में शामिल हैं या दीगर पीएसडीपी में जो काम शामिल हैं, जनाब स्पीकर, वहाँ मौसमी हालात बदल हैं आम अजला से। नीचे अजला में साल 12 महीने काम होता है, हमारे यहाँ जो है सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम 6 माह जो है वहाँ काम हो सकता है और 6 माह बाद, अभी 2-3 माह बाद फिर काम नहीं कर सकते। तो मैं वज़ीर मुवासलात से ये दरख्वास्त करूँगा कि फौरी तौर पर सीपेक में जो काम शामिल है उसको फौरी तौर पर शुरू किया जाए और चिकीदरा चित्राल रोड एक्सप्रेस वाई इसका नाम रखा जाए और इन पर भी फौरी तौर पर काम बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब फ़हीम खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अजरक मेरा सकाफ़त है, अजरक मेरी शान है। क्या मुझे ये बताएं, ये वो टाइम है कि हम अजरक पे सियासत करें या अजरक का बिल या इस तरह की चीज़ें लाएं कि नंबर प्लेट अजरक वाली हो? सर, अजरक में फिर कह दूं, मेरे सर का ताज है, मेरा सकाफत है, मैं सिंधी हूँ, सिंध का रहने वाला हूँ। सर, बात यह है, कल जब ज्यादा बारिश होता है ज्यादा पानी आता है, कल ज्यादा पानी नहीं आया सर, कल थोड़ा बारिश हुआ, पानी कितना आ गया है सर? 4 लोग कराची के सर, एक बच्ची बिलाल कॉलोनी कुरंगी में, एक नौजवान नाले में, इसके अलावा जाके सर 4 लोग। अफसोस सर, अफसोस सद अफसोस, वहां लोग मर रहे थे, कराची के लोग सिसक रहे थे, यहाँ पे केक कट रहा था, कॉफियां चल रही थी सर। ये बदला नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, बोलने दें उनको। सर, मुझे एक बात बताएं, मेरे दोस्त ने सवाल किया कि जो वफाक ने 15-15 करोड़ रुपए दिए उसका हिसाब। सर, अभी 1 महीना नहीं हुआ जो हमें 15 करोड़ रुपए मिले। वफाक ने जो गली मोहल्ले में काम करवा रहा है, जिस पे इनको तकलीफ है, उसके लिए ये हाई कोर्ट गए, स्टे लेने गए। मैं इनको दावत देता हूं, पूरी टीम के साथ आए, जहां बोलेंगे गली मोहल्ले में इनको काम दिखाएंगे। अगर वो 15 करोड़ के काम आपको 30 करोड़ के ना लगे, फिर जो आप बोलना, हम आपके जुर्मदार हैं। पर मुझे एक बात बताएं आप, मुझे एक बात बताएं आप, सर, पिछले साल बारिश हुई, हमारे मिनिस्टर अली जैदी साहब ने अपनी मदद आपके तहत सर नाले साफ करवाए। उसके बावजूद क्या किया इन्होंने? इतने रोड़े अटकाए, कहीं हमें नाले खाली करने नहीं दिया गया। सर, ये सरेआम दुश्मनी पे उतरे हुए थे सर। पिछले साल के बनिस्बत आज देखे पूरा कराची डूब चुका है, पूरा कराची डूबा है। इनको केक काटने से फुर्सत मिले। मुझे बताएं, मैं इसी फ्लोर के ऊपर कह चुका हूं, वाटर बोर्ड के 12,000 गोश्त मुलाजमीन है, गोश्त मुलाजमीन है 12,000। सर, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है? सर, उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर लेटर होता है, कुरंगी से बल्दिया ट्रांसफर, पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह की सियासी भर्तियां की गई है, इदारों में तबाह किए गए इदारे, कराची को तबाह किया गया इन्होंने। सर, ये बात करते हैं। और इसके अलावा सर, इन्होंने कहा, फाजिल दोस्त ने, कि एक अजीब तमाशा था कि इलेक्ट्रिक के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ था। सर, मैं इनको बताता चलूं, ये अखलाकी जुर्रत पीटीआई के लोगों में है, हम में जुर्रत, कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हम में जुर्रत है, हम खड़े होते हैं। सर, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इनके साथ चलता हूं, वो जुर्रत पैदा करे जो जुर्रत हमारे अंदर है। सीएम सिंध के ऑफिस के बाहर मैं बैठूंगा, आए मेरे साथ, पैदा करे वो जुर्रत। नहीं छोड़ते हम किसी अपने मिनिस्टर को भी जो कराची या हमारे मुल्क के खिलाफ बात करता है, ये करे वो जुर्रत पैदा। आए आए कराची के लिए आए, निकले बाहर, मैं देखता हूं कितनी जुर्रत है इनमें। बात करते हैं यहाँ पे कराची की। ये मुझे बताए कि हमने धरना दिया, हम नहीं छोड़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक को। एग्रीमेंट कब हुआ? 31 अरब रुपए किसने माफ किए भाई? किसने माफ किए? आपकी हुकूमत ने माफ किए। खुदा के लिए वोट का जो वोट आपको मिला उसका हक तो अदा करें। निकले अपने हुकूमत से, पूछे बिलावल सरदारी से। वो कहता है जब बारिश होता है पानी आता है, थोड़ी सी बारिश हुई पूरा कराची डूब गया। सर, ये 12 साल से जग मार रहे थे, क्या कर रहे थे लोग 12 साल से? मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारे हल्के में जाए, इतना काम हमने किया है, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मैं कराची के लिए हम निकलेंगे, हम पैदा करो अखलाकी जुर्रत, चलो हमारे साथ, सीएम के ऑफिस के बाहर बैठो, बिलावल हाउस के बाहर बैठो, आओ कराची के लिए हमारे साथ
बात करते हो या तुम लोग कराची के लिए? शर्म आनी चाहिए। जी, कराची तरक्की कर रहा है, सही जी। तेरा कराची तरक्की करेगा, तुम लोग देखोगे। बहुत शुक्रिया, तुम्हारी आंखों के आगे बहुत करेगा शुक्रिया तरक्की। जी। आगा रफीउल्लाह साहब, आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बड़ी 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 तड़प और बड़ी गरज सुनी है। अफसोस की बात यह है कि जब आपको गुफ्तगू का ना पता हो तो, और अफसोस की बात चेयर से भी है कि जब उन्होंने कहा कि जक वाली बात, तो जब हम यहाँ से इनके अल्फाज में जवाब देते हैं फिर चेयर को भी तकलीफ होती है और फिर लोग भी कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान, इनका मुंह बंद करवाएं नहीं तो मैं वो ऐसी बात करूंगा। आपस में बातचीत ना करें। खामोश खामोश। फहीम खान, आपको पूरा मौका दिया है, आप अभी खामोश हो जाएं। आपको पूरा मौका दिया है और चेयर को मुखातिब हो प्लीज। आप भी जनाब। जी हाँ, इसको एक्सपंज किया जाए। मैं यहाँ पे जो है एज ए स्पीकर हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि इंसाफ के साथ इस ईवान को चलाऊं। सर अगर इंसाफ होता, जब वहां से जिस किस्म के अल्फाज अदा किए जा रहे थे तो आप मैंने उसको एक मना दफा किया अभी भी। स्पंज वाली बात कर देते। लेकिन खैर है, हम अपोजिशन में, हमें यह सहना पड़ेगा। जिस तरह सहना पड़ेगा कि इनको 15 करोड़ नहीं मिले, इनको 30 करोड़ रुपए मिले। ये अपनी आवाम से, अपने हल्के वालों से अब भी झूठ बोल रहे हैं। 15 करोड़ पिछले साल मिले, 15 करोड़ इस साल मिले, और वो ये अपने मनपसंद और जिस तरीके से ये चला रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लोगों को नजर भी आएगा। अब आ जाए, बात करते हैं कि जी कचरों पे पानी, आप इनका मुंह बंद करवाएं फिर मैं बंद करवाऊं। आपस में बातचीत ना करें। जब आपकी बारी आएगी, आपको मौका मिला, आप अपनी बात आप कर चुके हैं जी। जो इसने बोला वो सच था और जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है। अच्छा, वो मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, लेकिन आपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा कि पानी थोड़ा था और गाड़ियां बहा के लेके जा रही है। ये टीवी स्क्रीन पे दिखाया गया है कि इतना पानी था कि गाड़ी उसमें बह रही है। और अफसोस की बात यह कि कचरा नहीं बह रहा। इशू ये है कि यहाँ पर किसी की मजाल नहीं है, जो ये आके सिलेक्टेड बैठे हुए ना, इनकी मजाल नहीं है कि उनके खिलाफ बात करें। ये बात ये है कि जो पानी का नेचुरल रो है, उस रो के ऊपर सोसाइटियां, उस रो के ऊपर आपने ब्लॉक किए हुए हैं मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जो इस अपनी अलहदा अजरादारी बना के बैठे हुए हैं। वहाँ एक सिंध देखे, हमेशा हम कहते रहे कि जनाब सिंध के अंदर, सिंध को तो आपने समझा ही अपनी एक कॉलोनी है। अगर हम अपनी मर्जी से अपनी मिट्टी पर काम करते हैं, वो जो पश्तो का जो लफ्ज है अख्पल अखा और अख्पल अख्तियार, वो इसलिए, ये 18वीं तरमीम के लिए जो हमने जदोजहद की वो इसलिए की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर कि आज भी अगर कराची का असल इशू हल करना है, मेरे साथ आज भी इस ऐवान के मेंबर साहब सुबह थे, तो मैंने कहा कि खुदा के लिए बात करें और हकायक पर करें। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग आपके पास, जिस तरह आज गवर्नमेंट के पास अपने परफॉर्मेंस शो करने के लिए कुछ नहीं है, तो गालम गलोच और खामखा में पिछली हुकूमतों पे बात डालना। 2 साल हो गए, आप प्रोग्रेस शो करें, आप कहें कि जी हमने ये किया, आपने कहा था कि जी हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करके दिखा दिया है, ये कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं है। अफसोस, फिर मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि अगर पानी कराची का इशू हल करना है तो हिम्मत पैदा करो बात करने की, क्योंकि वहां जाके तुम वो लोग हो जिनके जूते लाके तुम लोगों ने टॉक शो में रखे हैं। तुम्हारी औकात ये। फिर मैं दोबारा आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। जो पॉलिटिकल वर्कर होंगे वो जूते के पीछे नहीं छुपेंगे। बहुत शुक्रिया। हाउस के ताकत को, 22 करोड़ अवाम की ताकत के ऊपर बात करेंगे। जी तो जनाब, दोबारा बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब गुलदाद खान साहब, बात पूरी हो गई जी, बात पूरी हो गई जी। गुलदाद खान साहब, शुक्रिया। आपस में बातचीत ना करें, नारेबाजी ना लगाएं। बिल्कुल आपकी बात पूरी हो गई जी, पूरा आपको पॉइंट आ गया आपका। 1 मिनट जी, आपकी बात हो गई, अभी औरों को भी मैंने मौका देना है, मैंने आपको बात का पूरा मौका दिया है। शुक्रिया जी गुलदाद खान साहब, अपनी बात जारी रखें जी। गुलदाद खान साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो जी आगा रफीउल्लाह साहब मुख्तसर बात करें, आपको पूरा मौका पहले भी दिया। मैं नहीं करता कराची पे, मैं नहीं करता कंटोनमेंट बात की, मेरी तौबा। लेकिन सर
सर डिस्ट्रिक्ट कुरम नारेबाजी ना करें। बिल्कुल फहीम खान साहब, आप कितनी दफा आपको मैंने कहा आप नारेबाजी कर रहे हैं, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। सर आप कुछ चेयर का ख्याल करें, मैं यहां से आपको बार बार नाम लेके कह रहा हूं, बस चुप हो जाएं। जी हाँ बिल्कुल सर, फाटा को जो मर्ज किया गया है वहां पर इशू है कि कुरम, जो पहले कुरम एजेंसी थी अब कुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 2 धमाके हुए और आया दिन लोग मर रहे और वहां पर लासानी फसादात लाए जा रहे। मैं आपकी चेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि KP के CM को कहें कि एक दफा वहां जाके विजिट करें, खुदा के लिए उनको ऑन करें। वहां खून रेजी हो रही है। और एक बात, कराची मेहर कराची इनका सही जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई जी। जी जनाब गुलदार खान साहब, पॉइंट ऑफ व्यू। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो मैं एक इशू की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जो बाजवड़ के अवाम इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है। ये कि जनाब स्पीकर, बाजवड़ मुमन जो मेन शहरा है 2 हफ्ते से बंद थे और अभी जुज़वी तौर पर 1 हफ्ते के लिए खुला है। मुमन के अवाम छोटे छोटे इशू पे मेन शहरा पे निकलते हैं और हफ्तों इस मेन शहरा को बंद कर देते हैं। जनाब स्पीकर, इससे हमारे ज़िले के अवाम को काफ़ी मुश्किलात है। यहाँ तक कि मुमन से वापस मरीज़ बाजवड़ लेके बरास्ता तेमरगरा पिशावर लेके आते हैं, जो इंतहाई जुल्म है। मेहरबानी करके यहाँ से रूलिंग दे कि ये मेन शहरा बंद करना ये बहुत ज़्यादती है और साथ साथ इससे दोनों अजला के अवाम में नफरतें बढ़ेगी। इसी के साथ एक रिलेटेड इशू है, वो ये कि मुमन के लोगों ने हमारा एक चेक पोस्ट है उस पर दावा किया है। बेशक मुमन और बाजवड़ के अवाम एक चेहरे पे 2 आंखें हैं, लेकिन इसके लिए एक आज़ाद कमीशन बना दे ताकि वो वहाँ जाके देख ले कि यह मज़कूरा जगह के लोग कौन से ज़िले में दर्ज है, आया इनका इंदिराज कौन से ज़िले में बाजवड़ के साथ है, यहाँ से तरक्याती फंड इन लोगों को मिलते हैं, तहसील और थाना इन लोगों के किधर से, बाजवड़ से। तो ये सब कुछ देख के इस पे एक फैसला करेगा। और इस पे एक तनाज़ा भी चल आ रहा है। रमज़ान से पहले हम लोग पार्लियामेंटेरियन दोनों तरफ से, मुमन और बाजवड़ से और इलाके के मशरान और उसमें खैबर के लोग भी शामिल थे, एक जरगा किया था कि इसमें एक बात कर लेंगे कि ये कौन सा ऐसा इशू है कि सारे साल इस पे हमारा मेन शहरा बंद होते रहते हैं, लिहाजा इसके लिए रोलिंग दे। और साथ साथ जनाब स्पीकर, इसी के साथ जो मलकन और बाजवड़ के हदबरारी का मसला है, सिलईपट्टी और बुसाक भी, इनके दोनों तरफ से लोग इस पे एग्री है कि इसमें एक फैसला हो जाए, इसके लिए भी एक रूलिंग दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहिबा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए मैंने बटन प्रेस किया और इंतहाई अफसोस के साथ कि ये सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि ये 2 साल होने को है जो हम ये सूरत हाल देख रहे हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के तनाज़े में हमारी पार्टी का कहाँ पे एक हिस्सा है। हम बार बार बटन प्रेस करते हैं, हमारे मेंबरान बैठे रहते हैं, सेशन शुरू होने से पहले आते हैं, सेशन ख़त्म होने तक बैठे रहते हैं, लेकिन इंतहाई अफसोस है कि इस साइड पे नज़र क्यों नहीं जाती। मैं आपकी जमात के जो है वो दे चुका हूँ, चित्राली साहब बात कर चुके हैं, आप कैसे कह सकती हैं कि आपकी जमात को मौका नहीं मिला? मैं हर वक्त यही मेरी कोशिश होती है कि मैं रूल्स के मुताबिक बात करूं,
यहाँ पे बात की जाती है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की। आईसीजे के हवाले से तो ऑर्डिनेंस आ जाते हैं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो डिमांड है, वो कहाँ पूरी हो रही है? वहाँ पे मिनिस्टर किस रूल के तहत उठ के आप अपोजिशन को डेली टारगेट किया जाता है? न क्वेश्चन आ रहा है, न पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, न पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन है। ये रूल्स कब हम फॉलो करेंगे? वी हैव सर्टन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। हम यहाँ पे बैठे होते हैं, आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनको अगर अल्लाह ताला ने ये ओहदा दिया है तो ये ओहदे और मनसब जो है आजमाइश है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे अवाम अब भी पूछ रही है, क्यों इस ईवान का तकद्दुस जो है पामाल किया जा रहा है, मुतनफ़र कर रहे हैं लोगों को? ये एटीट्यूड जनाब स्पीकर मैंने पहली मर्तबा इस पार्लियामेंट में आके देखा है, और एथिक्स कमेटी बनने के बावजूद ये सूरत हाल हम देख रहे हैं। मैं एजेंडे की तरफ आऊंगा आपकी स्पीच के बाद और एजेंडा पूरा करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये हालात कब तक चलते रहेंगे? आपका एजेंडा जो आज का सिर्फ देखें वो 43 आइटम्स हैं। जब आपका प्राइवेट मेंबर डे होता है वो मोर देन 200 आइटम्स पे चला जाता है, लेकिन जो ज़रूरी लेजिस्लेशन है उसके लिए आप काउंट करें, तारीख गवाह होगी। और ये अल्फाज स्याह रूफ से, स्याही से लिखे जाएंगे कि इस असम्बली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है, जो लेजिस्लेशन को टाइम दिया गया है, वो आप लिखेंगे कि जस्ट नॉट अ सिंगल सेकंड कि हम इस ऑर्डिनेंस में बात कर सकें। आप कल भूषण यादव के खिलाफ यहाँ पे उनको हम बोलते हैं, आप उनको सहूलतकार के तौर पे पेश करने के लिए सिर्फ आर्टिकल 89 के लिए जैसे हम बैठे हुए ऑर्डिनेंस के लिए हम उस पर बात ही नहीं कर सकते। आप जो है ये चीज़ लाते हैं और कहते हैं कि ये जेनेवा कन्वेंशन है कि हम पे लिमिटेशन है, बाइंडिंग है, ये हमारी आईसीजे की ऑब्लिगेशन है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे कुछ अवाम भी है, वो सिपाही, वो फौजी जवान जिन्होंने खून दिया है एलओसी पे, जिन्होंने खून दिया है बाउंड्री लाइन पे, उनका खून रायगा जाएगा। आपने 9 नवंबर को योम इकबाल पे राहदारी को लिया करतारपुर की, आपने योम शहादाए कश्मीर पे ट्रांजिट ट्रेड के लिए आपने रोड खोल दिए, आपने बॉर्डर खोल दिए। अब लगता यही है कि 5 अगस्त आने को है और आपने सकूते कश्मीर के लिए सहूलतकारी के लिए आप कल भूषण यादव को ये हिंदुस्तान को तोहफा दे रहे हैं कि हम गुड जस्टर कर रहे हैं। गुड जस्टर ये होता है कि यहाँ पे बैठ के आप उंगलियां ना उठाएं, आप अपने ईवान में बैठे हुए जो मेंबरान है वो एथिक्स के आप सीख लें, ये आपका गुड जस्टर होगा। यहाँ पे तो उंगलियों के इशारे से बातें होती है, नारे लगाए जाते हैं, और जी गुड जस्टर जो है आप बॉर्डर के उस पार किसको पैगाम दे रहे हैं? कश्मीरियों की जो कश्मीरों पे जो मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उन कश्मीरियों के जख्म पे अब नमक पाशी करना छोड़ दें और इस ऑर्डिनेंस को भी आप वापस लें। और यहाँ पे जो ईवान का तकद्दुस है अगर हम नहीं बरकरार रखेंगे तो याद रखें आने वाला वक्त जो है वो किसी का भी तकद्दुस और किसकी इज्जत भी नहीं होगी और सबकी इज्जतें फिर पामाल होंगी। तो मेरी आपसे इस्तदा है कि इस चेयर पे आप बैठे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप अल्फाज का जो चुनाव है उसका भी शाइस्तगी का भी ख्याल रखा जाए, और जो बंदा जिसको आप वार्न करें अगर तीसरी मरतबा आपकी वार्निंग ना हो तो उसको आप किक आउट करें, या आप रूल्स देख लें और आइंदा इस माहौल को इस तरह खराब ना होने दें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम जनाब आफ्ताब सदीकी साहब। रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब स्पीकर, लास्ट ईयर आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी, ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। इस साल बारिश बहुत कम हुई, पानी बहुत आया। जनाब स्पीकर, लास्ट ईयर 163 मिलीमीटर की बारिश हुई, कल 28 मिलीमीटर की एवरेज बारिश हुई। कराची शहर डूब गया। ये 35 सालों से सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं और 13वां साल तो ये कंटिन्यूअस इनकी हुकूमत का है। 18वीं तरमीम आई, उसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ तो कराची को हुआ। जनाब स्पीकर, इस 18वीं तरमीम की आड़ में कराची के साथ जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं।
कराची इस वक्त सिसक रहा है। कराची को अगर लास्ट ईयर लेट्स क्लीन कराची की में कैंपेन नहीं चलती, अली जैदी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने 45 दिन ये कैंपेन चलाई, उसमें हम सारे MNA MPs उसमें शामिल थे, और वो कैंपेन 9 करोड़ 80 लाख की प्राइवेट सेक्टर के थ्रू हुई, और उससे तमाम बड़े नालों से और छोटे नालों से कचरा निकाल दिया गया। ये कचरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, जिसको सिंध ने टेक ओवर किया हुआ है, क्या मैं पूछ सकता हूं अपने फाजिल मेंबरान से जो 3 MNA कराची से पीपल्स पार्टी के यहाँ पे आए हैं, क्यों नहीं कराची के लिए आवाज उठाते? फाजिल मेंबर ने कहा कि कैंटोनमेंट की वजह से ये पानी की रुकावट है और पानी बह नहीं सकता, पानी निकल नहीं सकता। जनाबे वाला, मेरे हलके में क्लेफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, अली जैदी साहब के हलके में फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड आता है, कैप्टन जमील साहब के हलके में मलिर कैंटोनमेंट आता है, मारीपुर का आता है। कहीं पे भी अगर ये साबित कर दें कि इन कैंटोनमेंट की वजह से इनकी रुकावट है, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे ऐलान करता हूं कि मैं रिजाइन कर दूंगा इसे। जी जनाब स्पीकर, सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कराची की कि कराची के सारे MNAs सरापा एहतजाज हैं, कराची के सारे MPs सरापा एहतजाज हैं। ये बताया जाए कि क्या ये फेडरल के अंडर में आता है कराची? अगर कराची फेडरल के अंडर में आता है तो फिर दे दिया जाए सारे हुकूक फेडरल को। K4 का मंसूबा भी फेडरल को दे देना चाहिए, सीवरेज वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी फेडरल को दे देना चाहिए, तमाम पार्क्स और प्ले ग्राउंड भी फेडरल को दे देना चाहिए। ये आड़ में छुपे रहते हैं, ये तासुब की आड़ में छुपे रहते हैं, ये प्री प्लान कराची को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। कराची तबाह होगा तो इकोनॉमी तबाह होगी। नारेबाजी ना करें जी, कराची तबाह होगा तो कराची की इकोनॉमी तबाह होगी, और कराची की इकोनॉमी पैरालाइज होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पैरालाइज हो जाएगी, जिसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान को पहुंचेगा। ये वो शहर है जनाब स्पीकर जो सिंध की कंट्रीब्यूशन का 95% जनरेट करके देता है, उसके बदले में कराची को क्या दिया जाता है? इस साल के बजट में एक टेढ़ी पैनी भी कराची के लिए डेवलपमेंट की मद में नहीं रखी गई। जनाब स्पीकर, 11 सालों से K4 का मंसूबा चल रहा है। K4 का मंसूबा जिससे 660 MGD वाटर कराची को मिलना था, जिसके फेज 1 में 260 MGD पिछले 2 साल से शेल्फ हुआ है, पिछले टेक्निकल ग्राउंड पे शेल्फ हो गया है। जनाब स्पीकर, अगर आपसे नहीं समझ सकता, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, जो 25 अरब का प्रोजेक्ट था वो 100 अरब से ज्यादा चला गया। जिस वक्त ये प्लान हुआ ना उसमें पावर प्लांट था, ना उसमें पंपिंग स्टेशन थे, ना ऑगमेंटेशन था, ना लेबर कॉलोनी थी। अब जनाब स्पीकर, कराची को 1/3 पानी मिलता है, कराची क्या करे? यहाँ एक मौजूद रुकन साहब ने कहा कि यहाँ के कराची के MNAs कराची और सिंध की बात करते हैं, क्या कराची और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो बता दें, हम छोड़ देते हैं। हमें लोगों ने मुंतखब किया है, हमें मैंडेट दिया है, कराची के अवाम ने 14 MNAs यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम 14 MNAs कराची की अगर बात ना करें तो क्या करें? आप तो तासुब की ऐनक लगाई हुई है आपने, एक ऐसे आदमी को DC लगा देते हैं जिसका ताल्लुक कराची से नहीं है। क्या वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां की आबादी 40 लाख है, उसको ना आता है ना पता है, वो कैसे मैनेज करेगा कि कितनी यूसीज हैं, 51 यूसीज को वो कैसे मैनेज करेगा? वो तो शुक्र है फेडरल गवर्नमेंट का कि आज उसको हटा दिया गया है, वापस के में भेज दिया गया है। बहुत शुक्रिया जी। जनाबे वाला, देख 2 मिनट अगर आप मुझे दे दें और तो भी बहुत से लोगों को मौका देना है। आपकी बात, सर, आपका पॉइंट आखिरी बात, पॉइंट आ गया कराची आपका को मोन्जोडारो बनाया जा रहा है। अगर कराची मोन्जोडारो बनता है तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खराब बात होगी। कराची को प्री प्लान खत्म किया जा रहा है और कराची के लिए कराची का जो हक बनता है वो सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं देती? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कराची के बल्दियात को खराब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब जी, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब। जी चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, माइक इनका
खोले जी। रहीम जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ चंद मिनट में अपनी बात क्लोज करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान के किसान काश्तकार जो हैं वो इंतहाई मजलूम लोग हैं और उनके साथ जुल्म व जबर की इंतहा हो गई है। इसलिए मैं ये बिल लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें बेसिक जो कंजम्पशन के रेट्स लिखे हैं वो 5 रुपये 35 पैसे लिखे हैं और 5 रुपये 35 पैसे ज़ाहिर किए जाते हैं पर यूनिट किसान से जो ट्यूबवेल चलाते हैं काश्तकारी के लिए, उनसे वसूल किए जाएंगे। और उसके साथ अजाफी जो अमाउंट है उसकी इंतहा कर दी है। मिसाल के तौर पर मैं इस बिल में ये लिखा है कि एक जनाब होगा QTR क्वार्टरली टैरिफ जो है वो पिछले 3 माह का इकट्ठा भेजा है का कहते हैं जी, और कोई नहीं वो टैरिफ किस कानून के तहत है। हमारा आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट कोई अजाफी टैक्स नहीं ले सकती ताकि पार्लियामेंट से बिल पास ना करवाया जाए। इस पे कोई कानून मैंने देखे हैं, तमाम कवानीन को गौर से देखा है, टैरिफ का कोई कानून नहीं है। और अब जून के महीने का बिल जुलाई में जो आया है उसमें 20,500 एक आइटम है जनाब टैरिफ की, और उसके बाद नीलम जेलम का एक लगाया है रेट, वो है सर। और उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट है वो है जी, और उसके बाद फ्यूल परचेज फ्यूल सेलिंग की सॉरी परचेज की आइटम है वो भी उसमें ऐड है। उसमें सरचार्ज है, उसमें रीसरचार्ज है। अब किसान बेचारा क्या करे? क्या उसको जिंदा रहने का हक नहीं है पाकिस्तान में? क्या हमारा आइन इस बात की गारंटी नहीं देता कि हर शख्स की लाइफ, उसकी लिबर्टी और उसकी प्रॉपर्टी जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ स्टेट के ज़िम्मे है और रियासत उसकी ज़मानत नहीं देती? तो जनाब वाला मेरी ये गुजारिश है, मैंने आज ही मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की थी जो वापदा को डील करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं बेबस हूँ, ये फाइनेंस वालों ने लगाए हैं। फाइनेंस ने किस कानून के तहत ये लगाया है हमें बताया जाए। और फिर ये मखलूक खुदा जो है जो खेती बाड़ी पर गुजारा करते हैं उनका कोई परेशान हाल नहीं है। उनकी अजनास जो है, अब मकई की फसल जो है जब तक काश्तकार के घर में थी 700 रुपये मन, अब वो काश्तकार से निकल गई है, अब 1100-1200 रुपये तक आ गई और कोई उसका तरीक़ेकार नहीं है। गंदम की स्पॉट प्राइस 1400 रुपये मन, लेकिन अब मार्केट में 2000 रुपये मन की, बल्कि उससे भी ऊपर है कीमत। तो आप एक्सपोर्ट करने के लिए वो चाहिए एग्रीकल्चर सेंसिस, वो शोबा ही ख़त्म हो गया। एक्सपोर्ट करने के लिए चाहिए वो उसका जिसको कहते हैं ग्रेडिंग सिस्टम, वो सिस्टम भी ख़त्म हो गया है। और कुछ पता नहीं, कुछ इल्म नहीं कि कौन सी आइटम एक्सपोर्ट होगी, कितनी होगी, कितनी पाकिस्तान में रखना दरकार होगी। और राइस जो हैं, आलू जो हैं, मकई की फसल है, गंदम है, कपास है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पैदावार कोई वक्त कोई संभालने वाला नहीं है तरीके से, और किसान को कुछ नहीं मिलता। और किसान के ऊपर टैक्सेस की ये बर्बाद जो शो की है, वो टैक्सेस भी नहीं है। टैक्स तो एक पार्लियामेंट पास करती है और हमारा आइन ये कहता है कि कोई टैक्स नहीं, कोई प्राइस नहीं लगाई जाएगी, कोई अमाउंट नहीं छीना जाएगा किसी से बगैर पार्लियामेंट के बिल के। ये आर्टिकल 77 है। तो मेहरबानी करके इसके लिए कोई सदेबाब करवाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। मोहतरमा नुज़रत पठान साहिबा। मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात करना चाह रही हूँ
कि एक तो ये कहा जाता है कि कराची और सिंध, तो मैं ये करेक्ट करना चाहती हूँ तो कि कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है, वो सिर्फ सिंध ही का हिस्सा है। कोई ये नहीं कह सकता कि पंजाब और लाहौर, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा। जब भी कराची की बात होगी इसका मकसद है कि सिंध की बात होगी, इसका मकसद है। और दूसरी बात यह है कि कराची में बारिश की वजह से जो अमवात हुई हैं, हम असेंबली के मेंबरान ख़ास करके जितने हमारे यहाँ मौजूद हैं, हम उन लोगों की ताज़ियत करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये सिलसिला बहुत अरसे से जारी है। 2000 से 2000 में मैंने के अक्टूबर के महीने में बारिश आई थी, तो मैं कराची में थी, तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी का बोनेट भी पूरा डूब गया था। उस वक्त जिस तरह प्लानिंग की गई थी कराची की, नेचुरल जो रास्ता था पानी की निकाली का, वो बंद किया गया था ये ब्रिजेस वगैरह बनाकर, और पानी का कराची का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो समंदर की तरफ रुख कर दिया गया था। अब जब भी मानसून की बारिश होती है तो वो समंदर जो है जब ऊपर होता है तो उससे पानी जो है वो वापस कराची शहर को डुबोता है। मैं अपने अली जैदी भाई साहब को, असद उमर साहब को और अब यहाँ जितने हमारे बैठे हुए हैं उनको ये गुजारिश करूँगी कि ये मुस्तकिल प्रॉब्लम है। इस मुस्तकिल प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये नहीं है कि हम सिर्फ तनकीद और स्पीच करके मसला हल करें। हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कराची के लोगों का ये मसला ज़रूर हल करे कि ये जो सही जी 2000। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब पंजाब असेंबली में एक बिल पास हुआ है, किसी प्राइवेट मेंबर ने बिल पास करवाया है, जो हमें लगता है कि ये हम जो अहल बैत रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, ये उनकी दिल आज़ारी है कि वो कहते हैं कि जो पंजतन पाक हैं, जो 14 मासूमीन हैं, उनको भी आप रज़ी अल्लाह ताला लिखो। रज़ी अल्लाह ताला उनके लिए लिखा जाता है जो काफर में से मुसलमान हुए। जो मासूमीन हैं, जो रसूलुल्लाह का हिस्सा हैं, उनको आप अलैहिस्सलाम कह सकते हैं, उन पर आप ये रज़ी अल्लाह ताला का तो नहीं लगा सकते। और दूसरी ये बात है कि आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते कि ज़बरदस्ती कानून बनेगा तो आप किसी को रज़ी अल्लाह बोलें और अलैहिस्सलाम को भी रज़ी अल्लाह बोलें। हम जो अलैहिस्सलाम कहने वाले हैं, हम अलैहिस्सलाम ही कहते रहेंगे। जो रज़ी अल्लाह होंगे उनको रज़ी अल्लाह ही कहेंगे। सो हम इस कानून की जो बिल पास हुआ किसी प्राइवेट बंदे ने दिया, हम उसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात यह है कि सिंध के अंदर, पूरी सिंध के अंदर जो है ना, एक तो वापडा का प्रॉब्लम है और दूसरी हमारे सिंध के अंदर जो है वो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। अभी जब कोविड-19 हुआ है तो हमें पता पड़ा कि सिंध के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। ना आपको ऑक्सीजन मिलता है वहाँ पर, ना आपको बेड मिल रहे हैं, ना आपको वो मास्क मिल रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारी जिस तरह इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स का विजिट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स को देख रहे हैं, इस तरह सिंध के हॉस्पिटल्स को भी देखें तो बहुत शुक्रिया जी। वान की कार्रवाई बरोज़ मंगल 28 जुलाई 2020